So let's revise first. Difference between terrorism, insurgency and Naxalism. Terrorism आपको पता है कि terrorism के अंदर there is a systematic, this is a planned, organized and systematic use of violence as a means of coercion for political gain के लिए, religious gain के लिए, ideological purpose. Okay. So another is insurgency. It's an armed rebellion. एक बागी बन जाते हैं वहीं के लोग. Okay. It's an armed struggle by a section of the society and they have the mass support. They have the public support. And this kind of thing we generally found in Nagaland. Right. Okay. Another is Naxalism. Naxalism is use of violence to destabilize the government through communist guerrilla warfare, right? And they have their own Maoist ideology. Maoist ideology क्या है? They want to complete overthrow the government. गवर्नमेंट को पूरा ओवरथ्रो करके उनको खुद की गवर्नमेंट वहां पे एस्टेब्लिश करनी पड़ती है, ठीक है? तो वो उनकी आइडियोलॉजी है. ओके, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कल हमने रीजन समझा था. इंसर्जेंसी का रीजन क्या होता है? हमने देखा था कि नॉर्थ ईस्ट में इट वाज डिफरेंट, एथनिक टेंशंस है वहां पे, उनका हिस्टोरिकल जो उनकी हिस्ट्री अलग है, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, डेवलपमेंट डेफिसिट है. सो different reasons are there. For terrorism there are different reasons, insurgency there are different reasons, Naxalism there are different reasons. Northeast insurgency और आप जम्मू एंड कश्मीर insurgency में there is a big difference. Can you tell me the reason behind the insurgency in Jammu and Kashmir? Is it an insurgency due to development deficit? डेवलपमेंट डेफिसिट से है या फिर कौन सी दूसरा रीजन हो सकता है? इट्स रिलीजियस, या इट्स रिलीजियस हो सकता है, आइडियोलॉजिकल हो सकता है, ठीक है? ठीक है, तो इट इज नॉट डेवलपमेंट. आपने बुक पढ़ी होगी ना अशोक कुमार आईपीएस, उसमें ये मतलब ये चीजें हैं. दीज आर द थिंग यू शुड नो. ये आपको पता होना चाहिए. थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंसेस है यहाँ, नहीं तो दिस क्वेश्चन विल नॉट डायरेक्टली बी आस्क्ड इन सीएपीएफ पेपर 2, बट I can assure you these questions, your background knowledge will be checked during CAPF interview. CAPF interview में they will check your background knowledge. They will check how deeply you understand this particular subject. They will check. Okay. So now is the time you prepare for it. Okay. Factor responsible. These are the factors: alienation, ethnicity, porosity of borders, demographic pattern, disconnect, widespread corruption is there, lack of visionary leadership between the tribal communities, easy availability of arms, right? Lack of development and their political support, instability in our neighborhood. Okay. Next is government response with respect to the Northeast extremism. We have the special schemes for development of Northeast. Northeast की अगर देखेंगे communication के लिए we have done very tremendous work in this area. We have installed a lot of communication I think infrastructure in Northeast, not in only Northeast, in Central India also, where Naxalism is there. वहाँ पे आपको देखेगा कि पहले there was no ways and means of communication, but उसके बाद आपको पता है कि गवर्नमेंट ने वहाँ पे इंस्टॉल किया. वहाँ पे you will find 3G, 2G, most of this internet connectivities have reached in this place. Why? Sharing of the information. Intelligence भी चाहिए गवर्नमेंट को, right? तो स्पेशल स्कीम फॉर डेवलपमेंट. गवर्नमेंट नोज कि दिस प्रोजेक्ट विल नॉट बी वायबल, बट गवर्नमेंट नोज कि ठीक है, वायबिलिटी इज वन थिंग, बट इफ यू इन्वेस्ट इन दिस एरिया, यहाँ पे अगर हम सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर एक्सपेंडिचर की बात करें, दैट इज वे मोर देन ऑन दिस द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. तो ठीक है, रादर देन स्पेंडिंग ऑन द सिक्योरिटी फोर्सेस, तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड कर सकते हैं. दैट देयर इफेक्ट विल बी लॉन्ग लास्टिंग. ओके, तो स्पेशल स्कीम फॉर डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट, स्पेशल पैकेजेस, proportionate use of force because force can be repelled through force only, dialogue and negotiations with these leaders of the this northeast region, structural changes to give political autonomy. We have talked about schedule 5, we have talked about the constitutional devolution of more powers to this area, we have talked about the special category states, article 371, decentralization and protection of tribal right is there, PESA Act is there, improving road and rail connectivity in the entire region, we have talked about it, lot of bridges, railway connectivity is there, air connectivity under Udan scheme, look east policy by vis-a-vis northeast region, we have talked about. Exhibition and seminars. Okay, exhibition and seminars, we have talked about lot of Suraj Kund Mela and this Hornbill festival and during Republic Day parade. Okay, that is all about the this insurgency. Naxalism, these are the things you should remember. Apart from it,
you can neglect everything given in the book. If you have this broad framework in your mind regarding the Naxalism, you will sail through, I can promise. इतना ही अगर आपने याद कर लिया, you can do any question regarding the Naxalism. So these are the reasons for the Naxalism, why Naxalism is there. We know, we have talked about the problem of vacuum. Whenever you will find a vacuum in that area, जैसे आप सपोज किया कीजिए, I will give you an analogy. अगर आपकी संगति अच्छी नहीं है, ठीक है, first of all I will say, if suppose there is some condition, if a child is orphan, if a child is orphan, he does not have parents, तो होता क्या है, he will get into the trap of some this human trafficking people. Okay, his peer group will be bad, right? So there is no a third eye over him to watch all his activity and monitoring his activity. तो यही होता है जब वहां पे गवर्नमेंट डेफिसिट होता है, गवर्नेंस डेफिसिट इन एन एरिया, सेम थिंग हैपन ओवर देयर. Bad people come to occupy that particular vacuum, right? So that's why Naxalism originated. That is a one particular aspect. Okay, unemployment, poverty, infrastructure deficit, lack of education, these are the reasons, because there is a development of a deficit. You need to think development in these ways. डेवलपमेंट का सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब नहीं होता, डेवलपमेंट का मतलब होता है देयर मस्ट बी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, पॉवर्टी वहां पे कम होनी चाहिए, हेल्थ फैसिलिटी शुड बी देयर, एजुकेशन. ओके, नाउ द सोशल एक्सक्लूजन एंड एलियनेशन. सोशल एक्सक्लूजन एंड एलियनेशन मीनिंग वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. ओके, discontent against government, discontent with mainstream society. We have talked about what is mainstream society, like the mainland India के अंदर जो politics हो रही है. Okay, discontent against government. Whenever the government come with new schemes, they do not participate. I think most of you have heard this civil disobedience movement during our freedom struggle. So that shows the discontent against the government. Whenever they try to bring new policies or schemes in that area, people boycott that. Okay, now the government deficit is there, lack of routine administration. We have talked about, no law and order situation is there. और वहां पे कुछ लॉ एंड ऑर्डर का कुछ है नहीं, पुलिस इज नॉट देयर, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज नॉट देयर, डीएम इज नॉट प्रेजेंट देयर, पीडीएस शॉप्स आर नॉट देयर. ओके, पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्पेशल लॉज. वी हैव सीन लास्ट, आई थिंक गिरीश हैज मेंशन्ड कि जो रूरल एरियाज के अंदर द स्टेटस ऑफ रूरल पंचायत हैज converted into the urban panchayat to bypass the PESA law. Okay, another is this Jal Zameen Jangal, that is the traditional way of their living, that is also compromised. Okay, this lead to the Naxalism. Now the counter strategy we have talked about. This is the broader thing. Counter strategy through counter insurgency. Okay, this should be our first steps. Force should be repelled by force. We will send our central armed police forces. We will make state police forces more capable through their training. We will do the modernization. We will do the police reform. We will make our intelligence system more better. Okay, so now the development part of development जो हमने बात किया था, क्या क्या, education, employment, poverty, उसके बाद health, where things. गुड गवर्नेंस की हम बात करें, वहां पे देयर शुड बी अ प्रेजेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, देयर शुड बी अ प्रेजेंस ऑफ बहुत सारी वहां पे जो आपके गुड गवर्नेंस के लिए देयर शुड बी सम मैकेनिज्म which will hear the grievances of the local people. Okay, now the surrender and rehabilitation policy we have talked about. If anybody want to come into the mainstream society, if anybody want to become the part of the society, he is welcomed. Okay, so surrender rehabilitation policy is there. Okay, perception management we have talked about. We need to spread our positive work of the forces. We need to send them a great the right signal that the security forces is for their betterment. Okay, we will send some videos. We will do campaign in their area. We have organized the civil medical camps there, veterinary camps there, various things. International coordination we have talked about. We have worked with the Nepal, we have worked with China. Okay, Myanmar also. Now we'll in this particular session we have this linkages between development and spread of extremism. Okay, so I think in the last we will do a one particular question, that is underdevelopment is the product of development. That would be our this topic for the discussion today. In the last, उससे पहले हम देखेंगे linkages between development and spread of extremism. This is only directly from the book, this इंटरनल सिक्योरिटी बाय अशोक कुमार IPS सर. सो वन इंपॉर्टेंट कोट, अगर आपको कोट लिखना है किसी ऐसे के दौरान, तो दिस शुड बी द कोट, दैट नो वन इन दिस वर्ल्ड कैन बी कंफर्टेबल और सेव वन
or save one, so many people are suffering and deprived. I think there is something is missing. No one in this world can be comfortable or safe. Okay, comfortable or safe. Safe one. So many people are suffering. So many people are suffering. ठीक है, तो इसका हिंदी का अनुवाद यही होगा, अगर दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग अगर सफर कर रहे हैं तो इसका मतलब है nobody is safe. And UPSC did ask one particular essay topic in civil service exam, and the topic is same है, statement को rephrase किया गया है, statement is only rephrase, and the topic UPSC asked in civil service exam as an in essay paper, topic was poverty and inequality anywhere is a threat to peace and prosperity anywhere. Peace and prosperity everywhere, I think everywhere. Okay, so this is the same meaning of this particular time line जो कि UN सेक्रेटरी जनरल कोफी अनान ने बोला था, आई थिंक वे बैक, कि नो वन इन दिस वर्ल्ड कैन बी कंफर्टेबल. अगर किसी एरिया के अंदर देयर इज लॉट ऑफ पॉवर्टी एंड लॉट ऑफ सफरिंग इज देयर, एवरीबॉडी इन द एंड विल सफर. गिव अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ इट, जहां पे आप देख सकते हो इन एनी कंट्री, दैट कंट्री टर्म्ड एज अ रोग नेशन और टर्म्ड एज अ फेल्ड स्टेट, and that state has become a threat to all the peace and security of the world. Right, name any country. बहुत सारी है सामने ही आपको, प्लीज पार्टिसिपेट. अर्जेंटीना. ओके, अर्जेंटीना, दैट इज टू वे, आई थिंक इतना रेलिवेंट नहीं है, बट यस. और बता, इतना दूर की जा रहे हैं, नेबरहुड में रहिए ना. अफगानिस्तान नहीं, हाँ म्यांमार, पर ग्लोबल पीस के लिए अभी खतरा नहीं है, हमारे नेबरहुड के लिए म्यांमार. अफगानिस्तान खतरा है ना, अफगानिस्तान इज अ प्रॉब्लम. उसके बाद देखिए आप, नॉर्थ कोरिया है प्रॉब्लम हमारे लिए. यस, बिकॉज नॉर्थ कोरिया हैव न्यूक्स, राइट. नॉर्थ कोरिया हैज टर्म्ड एज अ रोग नेशन, किसी की नहीं मानता है, रोग नेशन उसको बोला गया है नॉर्थ कोरिया. क्या नॉर्थ कोरिया के अंदर पॉवर्टी है? एक्सट्रीम पॉवर्टी. नॉर्थ कोरिया के अंदर अनएम्प्लॉयबिलिटी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, एक्सट्रीम अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, सबको पता है नॉर्थ कोरिया के अंदर क्या हो रहा है. नॉर्थ कोरिया ने अपने छुपाने के लिए क्या किया है, ठीक है, दे आई थिंक दे बैंड द मीडिया हाउसेस, एक्सटर्नल मीडिया हाउसेस को बैन कर दिया है, कि वहां पे बहुत सारे लोग सिर्फ भूख से मर रहे हैं. सो नाउ इट इज बिकम अ थ्रेट टू ऑल द पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड. ओके, उसके बाद देखते हैं अफगानिस्तान, उसके बाद देखते हैं ईरान. ईरान प्रॉब्लम है हमारे लिए, ईरान एंड इराक वर्ल्ड पीस के लिए. यस, इराक की अगर आप बात करें तो इराक के अंदर देयर इज नो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, वो तो बिल्कुल ही मतलब आउटसाइडर्स उसको चला रहे थे. अमेरिका ने जब उसको इन्वेड किया था, व्हेन अमेरिका इन्वेडेड इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, तो उस टाइम हमने देखा था. ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान के अंदर सैंक्शन इज देयर, इकोनॉमिक क्राइसिस इज देयर. पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान तो बेल आउट के लिए कोशिश कर रहा है, श्रीलंका बेल आउट के लिए कोशिश कर रहा है, बट श्रीलंकन आर्मी स्ट्रॉन्ग, मतलब इतना नहीं है कि वो दैट पर्टिकुलर पीपल विल टर्न्ड इनटू टेररिस्ट. सभी पीपल ऐसे टर्न नहीं करेंगे, बट अफगानिस्तान का ऐसा केस है, वहां पे गवर्नमेंट देखिए. ईरान का ऐसा केस है, इराक का ऐसा केस है, राइट. सो इन दिस वे यू कैन थिंक. So this is the thing we are talking about, the linkages between development and spread of extremism. One classical example I want to give you, that is ISIS. Okay, Islamic State of Iraq and Syria. ये सबसे इसका क्लासिकल एग्जांपल था. वहां पे सरकार गिर गई, बहुत सारी चीजें हुई, ठीक है, तो स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म फैलने लगा. नो आई थिंक उसके बाद आई थिंक पुलिस फोर्सेस भी नहीं रही वहां पे, तो लोकल फोर्सेस टुक ओवर इन दैट पर्टिकुलर एरिया. अच्छा, अब देखते हैं मेजर कंपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट. काफी स्टूडेंट्स के लिए ये थोड़ा रिपीटेशन हो सकता है अगर आपने बुक से पढ़ लिया तो, बट वी विल ट्राई टू गिव एज मच एज this current event, or we will try to relate as much as current event with this particular major dimensions. जब भी फायदा होगा हमारा, जितना ज्यादा इसमें dimensions हम कवर करेंगे, जितना ज्यादा current affairs कवर करेंगे, that is the whole idea of this particular classes. क्योंकि ये तो आपके लिटरेचर, तो ये सभी चीजें जो ये हैं तो बुक में भी लिखा हुआ है. what is the benefit of these classes? Ask question, relate things. Okay, major component of development.
these are the certain component of development जिससे हम development को measure करते हैं. India recently has become this fifth largest economy of the world. On the same time, there is a report by this Oxfam International inequality report on inequality by the Oxfam. उसमें बताया कि inequality is on rise in India. इंडिया के अंदर inequality क्या कर रही है, बढ़ रही है. Around 5% of the top most population, they have the access or they are holding around 60 to 70% of the resources, 60% of the resources. So this is the grave inequality. So how do you measure development? Development measure करने के लिए the United Nations, when they come up with the important parameters, that is called HDI, right? Human Development Index. आप पढ़ते हैं इसका, सिर्फ रैंक पढ़ के छोड़ देते हैं, but this is a very important parameter or index to measure the development of human. उसके बाद because in HDI there are only three things. They measure the development in education, development in health, and the development or the increase in life expectancy. Okay, these are the three broad parameters, but after a period of time we felt that these parameters are not sufficient. We need more parameters जिसमें हम जान सके the development is not only about education, health, and life expectancy, but thereafter this I think UNDP, United Nations Development Program, in collaboration with UNESCO or something, they come up with the multi-dimensional poverty index. ठीक है, MDP करके आता है. उसमें there are 10 parameters. 10 parameters की बात करें तो access to they have talked about the access to electricity, access to they have talked about the healthcare facilities, access to water, access to housing facilities, access to sanitation condition. There are numerous I think parameters they have added over the period of time, because the development definition has been changed. पहले development का मतलब था रोटी कपड़ा मकान, सिर्फ इतना ही. But development का मतलब है whether you are availing your fundamental rights or not, whether you are availing your human rights or not. So this has also become a part of your development. So now we will study the major component of development. Socio-economic development के अंदर what comes? Employment. Do you have the employment opportunities? Per capita income, if you see the per capita income with comparative to this UK, it is I think not even 1/10. UK has 40 times per capita income of India. Although India has become the fifth largest country in terms of GDP, but UK की जो per capita income है, that is 40 times. उनकी ह्यूमन डेवलपमेंट कितनी ज्यादा होगी हमसे, समझ रहे? द पर कैपिटा इनकम, दिस शोज आई थिंक दिस इज द रियल पैरामीटर. पर कैपिटा इनकम जितनी ज्यादा होगी तो अच्छा है, बट इसमें भी थोड़ा जुमला है पर कैपिटा इनकम में, बिकॉज पर कैपिटा इनकम आपको पता है इट इज द टोटल जीडीपी ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन. इसमें इनइक्वालिटी वाला सिस्टम आपको नहीं दिखता है. हाँ ठीक है, अगर कल को 5% ही जो पॉपुलेशन है ये और पैसा कमा ले, अदानी, मुकेश अंबानी और ये सब, दे अर्न मोर मनी, तो जीडीपी में आपके काउंट होगा, लेकिन गरीबों के पास तो नहीं जा रहा है. ठीक है, सो पर कैपिटा इनकम इज आल्सो नॉट अ गुड सोर्स. तो एमडीपीआई जो चेंज हुआ था, अब जो ये एक अच्छा सोर्स है अब मेजर करने का डेवलपमेंट. ओके, अनदर थिंग इज नीति आयोग भी निकालता है अब तो. नीति आयोग हैज स्टार्टेड वन पर्टिकुलर इंडेक्स. कोई बताएगा फॉर द मेजर ऑफ डेवलपमेंट? हेल्थ से रिलेटेड वो निकालने लग गया है. हेल्थ से रिलेटेड स्टेट हेल्थ इंडेक्स इज देयर. एजुकेशन से रिलेटेड एजुकेशन इंडेक्स इज देयर. वाटर से रिलेटेड there is a comprehensive water index is there. There are lot of indexes जो हमारा नीति आयोग जो think tank है वो निकालने लग गया है. ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे there is SDG index also released by the नीति आयोग. Various thing is there. Okay, so coming back to the economic development, industrial development is there. That all these things comes under economic development. तो मैं आपको कहाँ से कहाँ ले गया इसमें? एक तो हमने फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई. क्या उससे आपको लगता है पॉवर्टी कम होगी? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. एक आप इकोनॉमिक्स में जब एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स में जब कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड, आई फॉरगॉट द नेम, उसका कॉन्सेप्ट का नेम याद नहीं आ रहा, बट इट्स एडम स्मिथ ने दिया था वो. एडम स्मिथ ही हैज गिवन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. उन्होंने बोला यस, विद द इंक्रीज ऑफ जीडीपी द इनइक्वालिटी विल राइज ओवर पीरियड ऑफ टाइम. सबसे पहले जो अगर जीडीपी इंक्रीज होगी तो इनइक्वालिटी विल राइज. But over the period of time, after 10 or 20 years, that particular the fruits of GDP will percolate down. तो वो जो गरीब जनता है उनको भी उसके इफेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा.
so the inequality curves will decrease over the period of time. GDP के increase करने के बाद, but there will be some time lag. उसमें टाइम लैग 5 साल का भी हो सकता है, 10 साल का भी, 15 साल का भी. इमीडिएट you will not feel any relief with the rise in GDP. Okay, so this was the concept given by the Adam Smith. Okay, so now comes to the social development. So in the end we will connect it with the extremism कि development नहीं हो रही है तो वो कैसे extremism को ज्यादा बढ़ावा दे रही है. So social development, these are the broader thing you need to understand. Every time UPSC give you just one thing, that sometimes I think they've given one particular topic, that is from economic growth to well-being. So if you do not understand what is economic growth, if you do not understand what is well-being, so you will not be able to answer. So these keywords और इसके अंदर जो dimensions है ये important है. सिर्फ ये पता लगा लीजिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है, पर कैपिटा इनकम, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट. नाउ योर वर्क इज डन. अगर आपको 3 डायमेंशन पता है तो यू विल बी इजीली एबल टू राइट समथिंग ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. उसके बाद जैसे ऐसे कोई टॉपिक पूछ ले तो आपको आना चाहिए सब. उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट. अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इज नॉट ओनली अबाउट दिस. अगर हम जो हेल्थ फैसिलिटीज दे दें उनको बस, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट. ह्यूमन डेवलपमेंट इज लॉट मोर. ह्यूमन डेवलपमेंट इज हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन राइट्स. One topic that UPSC asked in CAPF exam is ensuring, ध्यान से सुनिए, ensuring social justice is a human right. Ensuring social justice is a human right. Unless and until you do not know the meaning of these 2 words, you will not be able to write on this. तो human rights क्या है, सोशल जस्टिस क्या है, ये आपको पता होना चाहिए. सोशल जस्टिस, व्हाट इज सोशल जस्टिस, व्हाट इज ह्यूमन राइट. सो दीज डायमेंशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो ह्यूमन डेवलपमेंट, इसके अंडर आता है हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन राइट्स, लाइफ विद डिग्निटी एंड सेल्फ एस्टीम. लाइफ विद डिग्निटी, if we can give some example, life with dignity, आपने सभी ने सुना होगा एग्जांपल, मैनुअल स्कैवेंजर्स इज देयर. ठीक है, आपको पता है कि जो एमसीडी के अंदर, पहले दिल्ली एमसीडी के अंदर या फिर किसी भी एमसीडी के अंदर, दे डू नॉट हैव द एक्सेस टू द मैकेनाइज्ड और मतलब मैकेनिक जो होते हैं उनमें, सॉरी, मशीन्स होती हैं जो सीवर साफ करती है, वो सब नहीं था. ह्यूमन इंटरवेंशन उसमें करना पड़ता था. वेरियस थिंग्स यू हैव सीन इन दिल्ली के अंदर कि मतलब वो गटर के अंदर गया, उसको सफाई करनी थी वहां पे, तो वो जो पॉइजनस गैस होती है, दे इनहेल दैट एंड दे डाइड ऑन द स्पॉट. उनको बचाने 2 आदमी और गए, वो भी वो इनहेल किया एंड दे डाइड. सो दिस इज अबाउट द लाइफ विद डिग्निटी, वर्क मतलब डिग्निफाइड वर्क. सो दैट इज कॉम्प्रोमाइज. ह्यूमन डेवलपमेंट इज मिसिंग. सेल्फ एस्टीम अगर हम देखें तो सेल्फ एस्टीम की अगर बात करें, the people who belongs to marginalized section of the society or the lower caste of the society, they most of the time they are punished. ठीक है, उनको बचाने के लिए हमने क्या लिया, ST एट्रोसिटी एक्ट. ठीक है, एट्रोसिटी एक्ट. पहले इस एक्ट का नाम था सिविल लिबर्टी एक्ट, सिविल लिबर्टी एक्ट, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द नेम इज चेंज टू SC/ST एट्रोसिटी एक्ट. ठीक है, तो ये सेल्फ एस्टीम उनकी बचाने के लिए. नाउ यू कैन नॉट कॉल नॉर्थ ईस्ट पीपल विद वन पर्टिकुलर नेम. ठीक है, 2 साल की सजा है अगर उसको बोलोगे तो आप. if you found people from the SC community, if you name some derogatory, or if you put some derogatory remarks on them, you will be jailed for I think 2-3 years or 2-3 months, and that is also non bailable है, वो bail नहीं होगी आपकी. तो इतना ज्यादा प्रोविजन उसमें है. to ensures there should be a human development. anti untouchability act is there. Okay, lot of thing is there. उसके बाद political development. Political development के अंदर there is democracy, there is political rights and civil rights. What is the difference between political rights and civil rights? Anybody? Political rights and civil rights. I think most of you know there is a political rights का मतलब you have you can vote, you can select your representative. ठीक है, you yourself can elect yourself, right? आप खुद का भी मतलब आप कोशिश कर सकते हैं, इलेक्शन में उठ सकते हैं. So you have the right to elect and the right to be elected. That comes under political right. Universal adult franchise भी बोल सकते हैं. Civil rights के अंदर, civil rights के अंदर there are freedom of expression is there. Okay, civil rights है आपका freedom of expression. These things come under civil rights. Okay.
Okay, now the social development के अंदर there are gender equality. I think अगर हम development की बात करें, but there are very good gender equality amongst the Naxalites. ठीक है, नक्सलाइट्स के अंदर अगर हम देखें तो जेंडर इक्वालिटी बेटर है, विमेन्स एट पार विद द मैन इन दीज एरियाज, उनके साथ काम करती है। दे आर आल्सो लीडिंग इन, दे आर लीडिंग इन रोल ऑफ कमांडिंग रोल भी उनको मिलता है इन नक्सल एरियाज के अंदर। सो जेंडर इक्वालिटी उनके पास है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द पीपल इन द नॉर्थ ईस्ट, the women generally is the head of the society. So this in northeast, the society is matrilineal. They trace their family from the mothers. तो मदर से उनका होता है, हमारे यहाँ पे फादर से होता है, दे आर, हमारे यहाँ पे क्या है, पेट्रीलिनियल हो गया, ठीक है, वहाँ पे मेट्रीलिनियल है। तो जेंडर इक्वालिटी वी फाइंड इन दिस पर्टिकुलर एरियाज। तो ये एनोमली है। कई बार बोलते हैं कि जो मेन सोसाइटी के अंदर वहाँ पे जेंडर इक्वालिटी नहीं दिख रही, बट इन दिस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी यहाँ पे ज्यादा जेंडर इक्वालिटी है। विमेन एम्पावरमेंट की बात कर सकते हैं, सोशल डेवलपमेंट, यू शुड नो दैट दिस ब्रॉड डायमेंशन अंडर सोशल डेवलपमेंट, जेंडर इक्वालिटी, विमेन एम्पावरमेंट, प्लूरलिज्म, हमने बात की थी ना प्लूरलिज्म, अभी तक तो बात नहीं की, बट प्लूरलिज्म के अंदर मतलब इंडिया की बात करें, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे अगर हम बात करें, बहुत सारी चीजें हो रही है हमारे यहाँ पे। द कांग्रेस पार्टी इज टाइम एंड अगेन क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट के हिंदू आइडियोलॉजी को ये पर्टिकुलरली बिलीव कर रहे हैं, और जो आइडियोलॉजी जैसे मुस्लिम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी दे आर सप्रेस्ड, SC and ST section of the society they are suppressed. So the nation is no more a pluralist nowadays. That is alleged, that is not proven, that is alleged. कहीं पे नहीं लिखेंगे आप ऐसा, ठीक है। ये allegation और proved में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। अगर आपको पेपर में कहीं पे लिखना है, you should write controversial statement in a balanced way. You will be writing that these are the things alleged, ठीक है, ऐसा आरोप लगाया गया है। जैसे अब नॉर्थ ईस्ट के अंदर बोलेंगे तो देयर आर सम केसेस ऑफ रेप आल्सो, सो फोर्सेस हैज बीन अलीज्ड फॉर द क्राइम्स ऑफ रेप, ठीक है, एलिगेशन है, सिर्फ प्रूव्ड नहीं है, प्रूव्ड भी है कई जगह पे बट इतने ज्यादा लार्जर स्केल पे नहीं है। सो यूज बैलेंस स्टेटमेंट। ओके, सो प्लूरलिज्म, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, इनटॉलरेंस की बात करते हैं हम कई बार, ठीक है, कि उनको बोला नहीं जाता। बहुत से आपने पॉलिटिकल पार्टीज की स्टेटमेंट पढ़ी होगी, अनुपम खेर को सुनते होगे आप इनटॉलरेंस के ऊपर, ठीक है। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी इज देयर, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड सोशल सिक्योरिटी कम्स अंडर सोशल डेवलपमेंट। सोशल सिक्योरिटी मींस आफ्टर द पीरियड ऑफ टाइम, जब आप 60 क्रॉस कर लेंगे, या फिर वेन एवर यू आर नॉट एबल टू वर्क, जब आप बूढ़े हो जाएंगे, डू यू हैव द सोशल सिक्योरिटी नेट विद यू, डू यू हैव द एक्सेस टू द हेल्थ, ठीक है। जो गवर्नमेंट सर्विस के अंडर होते हैं, जो या फिर ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंडर काम करते हैं, दे हैव द सोशल सिक्योरिटी नेट, दे हैव द मेडिकल फैसिलिटीज। आर्मी से जो रिटायर होता है उनको पता है मेडिकल फैसिलिटीज उनको मिलती है, उनके परिवार को, उनके बच्चों को। बट दोज पीपल लिविंग इन दीज एरियाज जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट तो छोड़ो, उनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी दे आर नॉट गेटिंग वर्क, तो सोशल सिक्योरिटी तो उनके लिए बहुत दूर की बात है, ठीक है। दे डू नॉट हैव द एक्सेस टू द पेंशन, दे डू नॉट हैव द एक्सेस टू द मेडिकल फैसिलिटीज, ठीक है, ये सभी चीजें। Okay, so these are the components of development. उसके बाद sustainable development. Yes, Girish. Sir, can we add social equality in social development? Yes, you can add social equality. Yes, so, social equality you can also add in this human development. These words, life with dignity and self-esteem, that is a social equality only. Okay. Okay. So next is infrastructure development is there. डेवलपमेंट को मेजर करने का ये एक और पैरामीटर है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो सबसे पहले हमारे दिमाग में इंफ्रास्ट्रक्चर ही आता है, बट अब के बाद आपके दिमाग में सबसे लास्ट में आना चाहिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपके दिमाग में बैठ गया है। दूसरी चीजें जो रिमेंबर करने की जरूरत है वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। टू सम एक्सटेंट ये नया है, दिस इज द पैराडाइम। एक पैराडाइम का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरा के अंदर, एक टाइम के अंदर एक आइडिया बहुत जो है प्रोमिनेंट बन जाता है, आइडिया इज प्रोमिनेंट। नाउ इन द 21st century the sustainable development idea is very prominent. This idea should be reflected in one of your essay while you are attempting your CPF paper 2, ठीक है, that is a prominent idea। जहां पे भी आपको ये दिखेगा कुछ भी ऐसा कुछ डेवलपमेंट की बात होगी, you should try to quote this sustainable development. Development should be sustainable, but over the period of time क्या है, अगर वो डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं है, so it will have some
ramification या फिर repercussion हो सकता है सब कुछ, right? Whatever we are seeing, जैसे let's talk about the green revolution. Green revolution is a successful venture or was a successful venture, but the green revolution itself was not sustainable. We are seeing the after effects of green revolution in northeastern states like the Punjab and Haryana, the over extraction of water, the excessive use of fertilizers lead to the health effect. There is an environmental effect also. If lot of paddy is cultivated, we have seen the agriculture is one of the largest emitter of methane gases. Okay, so we need to also talk about the sustainable development. Now coming to the administrative development. In administrative development, there is a good governance, there is a time bounded delivery of public services, public participation in government. पब्लिक पार्टिसिपेशन का के बात करें तो हम बोलते हैं ना, सबका साथ सबका विकास. So public participation in government, public participation in government कैसे ensure किया है government ने, past government ने? There was RTI Act is there, right? We can access the information through RTI. Okay. उसके बाद what are other mechanisms for the public participation in government? There was citizen charter. Polity पढ़ेंगे आप. There is citizen charter. Whenever you go in any bank में जाएंगे मतलब दिस इज द प्लेस जहाँ पे आपको सिटीजन चार्टर मिलेगा. बट हर एक इंस्टीट्यूट के अंदर होना चाहिए सिटीजन चार्टर. दैट इज मैंडेटरी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. LIC के अंदर जाएंगे, यू विल फाइंड सिटीजन चार्टर. किसी और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाएंगे, सिटीजन चार्टर. सिटीजन चार्टर का मतलब है द ऑर्गेनाइजेशन नीड टू डिस्क्लोज दैट इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम. अगर आपको बैंक अकाउंट खुलवाना है तो दैट पर्टिकुलर थिंग विल बी रिटन इन द सिटीजन चार्टर के 3 दिन में आपका खाता खोल के देंगे. ठीक है, 3 दिन में आपका खाता नहीं खुला, you can sue that particular person, right? So this is all about the citizen charter. Okay, now coming to the transparency, accountability, pro people governance. Accountability के लिए RTI is there. Accountability के लिए right to freedom of speech and expression is there. Right to protest is there. Right to accountability के लिए. Have you heard about of this particular concept like social audit? In the rural areas, in the gram panchayat, social audit is there that ensures accountability. Pro people governance, yes, pro people governance is there. सबका साथ सबका विकास, उसके अंडर क्या है pro people governance की बात? MG Narega is there to ensure a timely work to all the people. ठीक है, जो रूरल एरियाज के अंदर उनको टाइमली वर्क मिले. प्रो गवर्नेंस का मतलब है, प्रो पीपल गवर्नेंस का मतलब है जो उन लोगों को चाहिए. प्रो पीपल गवर्नेंस में यू कैन ऑल्सो राइट द फूड availability through PDS. Pro people governance, you can also write about the health facilities these people are getting through this. I think what is the present scheme the run by the government of India for the health sector? That is Ayushman Bharat. Okay, 5 लाख तक का क्या है इंश्योरेंस कवर फॉर अ वन पर्टिकुलर फैमिली annually, right? That also comes under pro people governance. Can you talk more about the pro people governance? I think that is Jan Dhan Yojana is there, right? Another thing you can quote about the pro people governance is there are a lot of subsidies are there. That subsidies itself become a topic which need to be discussed. We'll discuss it later. But pro people governance के अंदर there are the positive subsidies like the Kisan scheme. Under Kisan scheme, you give 6,000 rupees to a farmer who has less than 2 hectares of a land. Okay, 6,000 उसको सालाना मिलते हैं. That shows if that farmer is not capable, उसको इनपुट कॉस्ट मतलब उसके पास पैसा नहीं है, उसको खाद लेने का पैसा नहीं है, उसके पास पेट्रोल भरवाने का अपने ट्रैक्टर में पैसा नहीं है. सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग. ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये क्या है, ये मल्टीप्लाई होके मिलेगा उसको, गवर्नमेंट को भी मिलेगा मल्टीप्लाई होके, बिकॉज दिस इज इट्स अ डोमिनो इफेक्ट, इट्स अ गुड इफेक्ट. ओके, दिस काइंड ऑफ सब्सिडी शुड बी गिवन. बट जो सब्सिडी जैसे इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी होगी या फिर पावर सब्सिडीज होगी, पावर सब्सिडीज फार्मर्स को मिलती है. बट द पीपल हु आर कैपेबल in cities, the people, I think most of the people are capable to give the subsidy or to avail the electricity. ठीक है, अलग बात है, there are slums are there, but majority of the people in the cities, they are capable to pay the electricity bills. But that has also become a politicized matter.
मोस्ट ऑफ द पीपल्स, जैसे आप देखेंगे विमेन्स, नॉट ऑल विमेन्स आर डिपेंडेंट इन द सिटीज, सिटीज के अंदर विमेन्स भी कैपेबल हैं। यहाँ पे तो हम बात कर सकते हैं जेंडर इक्वालिटी की, बट इन सिटीज आई थिंक इन दिल्ली ऑल्सो डीटीसी के अंदर या फिर मेट्रो के अंदर भी कोशिश चल रही थी, बट ओनली इन डीटीसी, डीटीज बस के अंदर विमेन्स के लिए कॉम्पिटिशन है वो फ्री कर दिया गया है। एंड नाउ द टॉक इज गोइंग ऑन के जो द पीपल बिलोंगिंग टू द दिस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स या फिर लेबरर्स, उनके लिए भी डीटीसी विल बी मेड फ्री। ओके, so these kind of freebies there, पंजाब में एक अलग चला हुआ है freebies का कल्चर। ओके, freebies का कल्चर there was freebies culture of लोन वेवर, ठीक, लोन वेवर का बहुत ज्यादा किस्सा था 2014 और 15 के अंदर, बहुत बड़ा इशू बना था। यूपीएससी ने इस पे सीएपीएफ के अंदर एक क्वेश्चन पूछा था लोन वेवर के ऊपर। लोन वेवर कुछ नहीं है, फ्रीबीज ही है एक तरह से, इट्स अ फ्रीबीज। तो फ्रीबीज पे यूपीएससी आपके सीएपीएफ में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। फ्रीबीज पे क्वेश्चन था, फार्म वेवर इज myopic and farm waiver is myopic and politically motivated, ऐसा ही था कुछ। strategy change needed, strategy change needed, so this was the topic 2016 या फिर 17 में पूछा था। farm waiver is myopic and unsustainable, इस तरह से था। सो स्ट्रेटेजी चेंज नीडेड। सो फ्रीबीज से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ये टोटली फ्रीबीज का ही है। फ्रीबीज पे मुझे इस साल एक्सपेक्ट था, लेकिन जो इसकी डेवलपमेंट हुई फ्रीबीज की वो थोड़ा सा लेट हुई, कि वो आई थिंक वो जो न्यूज में ज्यादा आया फ्रीबीज का, वो इट वाज अराउंड जुलाई, जून और जुलाई। तो जब तक आई थिंक एग्जामिनर ने सेट कर लिया होगा दिमाग, बट कई बार होता है कि आपको लास्ट मिनट पे भी टॉपिक मिल जाता है, ठीक है। सो फ्रीबीज इज एक्सपेक्टेड नेक्स्ट ईयर विल बी आस्क्ड, तो इस पे आपको कैसे ना कैसे करके अपने व्यूज डेवलप करने हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट द डेवलपमेंट, और हमारा टॉपिक क्या है, टॉपिक भी यही है कि linkages between development and spread of extremism. This the development major component of development जो हमने अभी स्टडी किया है, that will also be part of your economy, ठीक है। इकोनॉमी में कोई टॉपिक आएगा तो यहाँ से हैंडल कर सकते हैं, सिर्फ इस 6 ब्रॉड या फिर 7 ब्रॉड हेडिंग से, ठीक है। सो ट्राई टू इंटरलिंक, एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड, किसी को भी आइसोलेशन या फिर साइलोस में वी विल नॉट रीड इट, so we'll integrate as much as possible. Now coming to the factor responsible for spread of extremism. I think in last class we have talked about this tribals way of living, that is Jal, Jameen and Jungle. So this tribals way of living, this tribal forest relationship is hampered, that is interfered by this government and also the outsiders. The violation of traditional laws, right? Land acquisition is there, हमने कल बात की थी लैंड एक्विजिशन, उनका रिहैबिलिटेट अच्छे से नहीं हो पाता है इन अदर एरियाज। कंपनसेशन, टाइमली कंपनसेशन नहीं है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंपेन थी, दैट इज नर्मदा बचाओ आंदोलन, बहुत 2004 और 5 के टाइम पे पीक पे था ये नर्मदा बचाओ आंदोलन। अगर आप बात करेंगे तो नर्मदा बचाओ के अंदर सरदार सरोवर डैम जो है, जो डैम है नर्मदा रिवर के ऊपर, वो बोला कि नर्मदा रिवर ठीक है, हम इस डैम की जो हाइट है हम इंक्रीज करना चाहते हैं 5 मीटर। इफ यू इंक्रीज द हाइट ऑफ दिस डैम बाय 5 मीटर्स, डू यू नो हाउ मच एरिया विल बी सबमर्ज्ड? अराउंड आई थिंक 1 मीटर अगर आप अप करते हैं डैम की हाइट, सो द एरिया सबमर्ज्ड आफ्टर द इंक्रीज ऑफ द हाइट ऑफ डैम बाय 1 मीटर, the area submerged will increase by I think 10 to 15 kilometer or 5 to 6 kilometer at least। 5 से 6 किलोमीटर एरिया सबमर्ज्ड हो जाएगा पानी के अंदर। क्या क्या रेपरकशन होंगे, क्या क्या उसके इफेक्ट होंगे? उसका इफेक्ट अगर आप देखें तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो उनका विलेजेस हैं, विलेजेस विल बी सबमर्ज्ड। बहुत टाइम से वो उस एरिया में रहते आ रहे हैं, दे आर कनेक्टेड विद दिस एरिया, सो देयर old tribal forest relationship that will be hampered, violation of traditional law will be there, land acquisition without appropriate compensation and rehabilitation. There are cases, there are allegation ke most of the tribals they never got the compensation and rehabilitation under this particular thing. Okay, another is
So this is the one particular incident I have given you, नर्मदा बचाओ आंदोलन. इसके बाद अगर आप बात करेंगे तो माइनिंग, एक्सट्रैक्शन, डिफोरेस्टेशन, देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स. ओके, दिस रिवर लिंकिंग प्रोग्राम, रिवर लिंकिंग प्रोग्राम आपने सुना है मध्य प्रदेश के अंदर केन बेतवा प्रोजेक्ट. क्या आपको लगता है बिना इसके रिहैबिटेशन के या फिर रीलोकेशन के, उनको वहां से हटाए बिना, विलेजेस उजाड़े बिना वो हो सकता है? नहीं हो सकता. ठीक है, इंटरलिंकिंग के लिए यू विल नीड दिस. किसी की तो कुर्बानी जाएगी उसमें. अब देख लो कुर्बानी किसकी जाएगी, वाइल्ड लाइफ की. देखो रिपोर्ट्स आर देयर. जो आपका पन्ना टाइगर रिजर्व है, पन्ना है, पता नहीं क्या नाम है, भूल गया मैं, तो जो एमपी के अंदर है, उसके अंदर सबमर्जेंस होगा. तो एरिया जो है, एरिया फॉर दिस पर्टिकुलर नेशनल पार्क के अंदर कुछ एरिया सबमर्ज होगा. तो एरिया सबमर्ज होने से द एरिया फॉर द वाइल्ड लाइफ विल बी, क्या हो जाएगा, श्रिंक. जो कार्निवोरस है उनका प्रे बेस क्या है, जिसका वो शिकार करते हैं, प्रे बेस कम होगा. ठीक है, प्रे बेस कम होगा, आने वाले टाइम पे उनका फूड कम पड़ जाएगा. कहाँ जाएंगे वो कार्निवोरस टाइगर की अगर बात करें? दे विल एंटर इनटू द सिटीज, विलेजेस. ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट विल इंक्रीज. ठीक है, उनकी भेड़ बकरियों को उठाएंगे, इन द एंड चिकन को उठा के ले जाएंगे, बच्चों को भी अटैक करेंगे, बूढ़ों को अटैक करेंगे. सो दिस इज द प्राइम कॉज ऑफ द ह्यूमन दिस एनिमल कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं कि डेवलपमेंट इज द कॉज ऑफ अंडर डेवलपमेंट. ओके, एक जगह डेवलपमेंट हो रही है, दूसरी जगह अंडर डेवलपमेंट होगी. ओके, डू यू नो द रीजन बिहाइंड द तेलंगाना? तेलंगाना बनने के पीछे रीजन पता है आपको क्या था? वन ऑफ द रीजन इज डेवलपमेंट. ठीक है, यस गिरीश, यू वांट टू से समथिंग? lower employment sir in Telangana. Yes. So this was the one of the reason जो गिरीश बोल रहे हैं. Another reason was, अगर आप देखेंगे, if you see most of the mining areas lies under तेलंगाना. तेलंगाना से बहुत सारा माइनिंग एरियाज तेलंगाना के अंदर है. बट इफ यू सी तेलंगाना के अंदर माइनिंग एरिया, ठीक है, वहां से कोल का एक्सट्रैक्शन हो रहा है. कोल का एक्सट्रैक्शन होके जो पैसा जनरेट हो रहा है, उस पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और सभी चीजें कहाँ हो रही है? आंध्रा के अंदर. ठीक है, तेलंगाना क्या था, डिप्राइव्ड किया गया. वहां से तो ठीक है जनरेट वो करके दे रहा है वो एरिया के अंदर, बट वहां पे कभी डेवलपमेंट हुआ नहीं. राइट. तो इसलिए एक पर्टिकुलर मूवमेंट अराइज, पॉपुलर मूवमेंट अराइज, दे डिमांडेड देयर ओन तेलंगाना. तो दिस वाज द रियल कॉज. ओके, अभी देखेंगे तो तेलंगाना के अंदर ये सब हुआ है. नेक्स्ट थिंग इज इकोनॉमिक आईफोन. ये कैसे आ गया? ओके, अनदर रीजन इज इकोनॉमिक. इकोनॉमिक के अंदर आप देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट लाइक पुअर ट्रांसपोर्ट, लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज, लैक ऑफ एजुकेशन, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, राइजिंग गैप बिटवीन रिच एंड पुअर. हैव्स एंड हैव्स नॉट का ये बहुत खतरनाक. दिस इज द मोस्ट ऑफ द डेंजरस, I think, factors are responsible for the spread of extremism. The gap between haves and haves not. Do you know the feeling of this relative deprivation? It's dangerous. That's why we have seen a lot of I think lot of chaos in northeast, lot of chaos in middle east, north of chaos in most of the chaos in you will see uh, in America also. In America also you have seen the issue of human rights. Most of the black and the white people, they fought. क्यों fought करते हैं आपस में? Due to relative deprivation. Blacks are only living in the outskirt of the city. City के outskirt पे वो रहते हैं. They are living in areas जहाँ पे उनको मतलब in a very constrained area के अंदर रहते हैं. Less land they are having, but large population of black people living in this small areas. ghetto बोलते हैं इसको. ghetto मतलब क्लोज्ड कम्युनिटी. वो कम्युनिटी वहां पे रहती है. ओके, सो रिलेटिव डेप्रिवेशन इज देयर. और कई को वहां पे सिविल, अगर कहीं को सिविल राइट्स हो गए वहां पे. सिविल राइट्स क्यों होते हैं? इसीलिए रिलेटिव डेप्रिवेशन. यू हैव सीन सिविल राइट्स इन दिल्ली. दिल्ली के अंदर आप देखेंगे 2020 या फिर 19 में हुए थे शायद, बिफोर द कोविड से पहले सिविल राइट्स वो देयर इन दिल्ली. व्हाट वाज द रीजन? रिलेटिव डेप्रिवेशन या फिर कम्युनलिज्म. कम्युनलिज्म डिस्कस करेंगे आज की क्लास में. सो कम्युनलिज्म एक रीजन रहा है. सो विल डिस्कस कम्युनलिज्म इन डिटेल.
बट अभी के लिए मैं आई एम जस्ट गिविंग यू रेफरेंस, कैसे कैसे रेफरेंस है, किस तरह से आपको सोचना है। सो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट। पॉवर्टी की अगर हम बात करें तो यस, पॉवर्टी इज अ मेजर डिफरेंस। अगर पॉवर्टी की अगर बात करें तो कैसे पॉवर्टी लीड्स टू द स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, ये तो आपको कनेक्ट हो गया होगा। सो लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन, ओके, communication, electricity, rising gap between rich and poor. Now the social के अंदर social inequalities, we have talked about the SC/ST atrocities, we have talked about the untouchability, discrimination, denial of human rights की बात आप कर सकते हैं। abuse of dignity of life that comes under abuse of dignity, बहुत तरह से होती है कि abuse of dignity of life, ठीक है। we have I think we have talked about lot of examples, manual scavenging वाला हमने किया है। उसके बाद dignity of life की अगर बात करें तो abuse of dignity by rape, ठीक है, racial abuses, ये भी आप इसमें बात करते हैं। religious abuses, targeting one particular community, okay। now the political के अंदर political reasons क्या हो सकते हैं? spread of extremism, lack of people's participation in government, yes, one of the major issues। government governance deficit, we have talked about the governance deficit, हमने बोला था जहां पे वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, गवर्नेंस नहीं होगी वहां पे, there will be a vacuum and the others will come to occupy that vacuum। so lack of routine administration, complete absence of government machinery in remote areas, poor implementation of laws, mismanagement and corruption in government schemes, okay। करप्शन इन गवर्नमेंट स्कीम्स की अगर बात करें तो पीडीएस के अंदर टाइमली उनको पैसा नहीं, मतलब खाना नहीं मिल रहा है, अंडर फूड सिक्योरिटी एक्ट, ओके। अनदर इज करप्शन के अंदर देयर आर मेनी स्कीम्स जो पेंशंस की अगर हम बात करें, नाउ द पेंशन हैज बिकम डिजिटाइज्ड, लीकेजेस कम हो चुके हैं, लेकिन पेंशन पहले फिजिकली मिलती थी। डमी जो आपके पेंशनर्स होते थे बहुत सारे, देयर वाज लॉट ऑफ लीकेजेस इन द सिस्टम, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू जैम ट्रिनिटी, Jan Aadhaar and this mobile number connected with this, so jam trinity, so it's a very good approach by the government of India to bridge all these leakages। next is ethnic को आप relate कर सकते हैं with the northeast, okay, there are ethnic tensions। geographical, which example you want to give? geographical के लिए that is responsible for the spread of extremism। ज्योग्राफिकल कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकता है स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म के? एनी एग्जांपल? सर नेचुरल डिजास्टर। यस, नेचुरल डिजास्टर। रिमोटनेस बोल सकते हैं एक और इसमें, नेचुरल डिजास्टर इज देयर, नेचुरल डिजास्टर, कैन वी से रिमोटनेस, मतलब बहुत दूर है मेन उससे, कंट्री साइड बोल दीजिए, बैकवर्ड एरिया, यस, मतलब जहां पे ये सभी चीजें नहीं है, दोज एरियाज विच लैक्स गवर्नेंस, विच लैक्स दिस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ज्योग्राफिकल कौन से ऐसे एरियाज होते हैं? बॉर्डर एरियाज, राइट, सेंट्रल इंडिया के अंदर जहाँ पे कंट्री साइड अब बोल सकते हैं, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन या फिर गवर्नेंस का डेफिसिट है। हिस्टोरिकल, कैन नेम एनी हिस्टोरिकल जहाँ पे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म? हिस्टोरिकल एग्जाम्पल कोई दीजिए एक्सट्रीमिज्म जिससे हुआ हो। yes, northeast है क्लासिकल एग्जांपल, हिस्टोरिकल फैक्टर है, they all time and again says that our history is different, we are different in terms of living style हमारा different है, हमारी thinking different है, तो ठीक है, historical is there। और historical आप बात कर सकते हैं 1947 के बाद participation political के अंदर आएगा वो आपका, okay, yes। now coming to the constitutional legal framework, लीगल सेफगार्ड क्या है ट्राइबल पॉपुलेशन को? एक्सप्लेन नहीं करना है कहीं भी, यू कैन नॉट, यू विल नॉट गेट अ चांस टू एक्सप्लेन दिस 5th शेड्यूल 9th शेड्यूल to explain in your essays, only you should give a reference, because the person who is checking your paper, he does not need an explanation, mind my words, अच्छे से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, do not explain him, only suggest him okay, these are the things, there's a way, it's a very big difference between explanation and suggestion। you are only suggesting that there are some constitutional and legal safeguards for tribal population, that is 5th schedule, 9th PESA Forest Act 2006, Prevention of Atrocities Act 1989, New Land Acquisition Act, the right to fair compensation, ठीक है, अगर आप किसी को उसकी जमीन से अलग करते हैं तो there should be a fair compensation, transparency in land acquisition, so these are the key points, these are the thing you should mention, only you mention कि आपको कोई रीजन देना है
या फिर गवर्नमेंट ने ये स्टेप ले लिए हैं, यू शुड मेंशन, ऐसे कुछ बना दीजिए, आप फ्लो चार्ट बना दीजिए, ठीक है, और इसको मेंशन कीजिए। एग्जामिनर विल बी हैप्पी, वो एग्जामिनर नेवर हैप्पी टू रीड ऑल द एक्सप्लेनेशन, बिग बिग पैराग्राफ्स पढ़ के वो कभी खुश नहीं होता है। The more you make your answer writing or essay writing more indicative, more suggestive, just जितना सजेस्टिव आप बनाएंगे उतना उसका काम जितना आसान करेंगे ना उतना बेटर है। बिकॉज वी हैव चेक द कॉपीज, हजारों कॉपी हमने चेक कर लिया, हमें पता है कि हाँ एग्जाम, हम तो अभी देखो वी आर बैचलर्स, लेकिन द एग्जामिनर हु इज चेकिंग योर कॉपी ही हैज बिकम इम्पेशेंट, ही मे बी अराउंड 50 और 60, 60-70 साल उसकी उम्र होगी, बच्चे उसके होंगे, ही मे हैव फैमिली प्रॉब्लम्स, he may have health problems, ऊपर से आपकी एक्सप्लेनेशन उसको पढ़नी पड़ गई, ठीक है, एंड दैट टू इन अ बैड हैंड राइटिंग। तो आप देख लिए उसके बाद आपका क्या हासिल होने वाला है, ठीक है, आपके 6 या 7 नंबर आएंगे। उससे अच्छा है आप सजेस्ट करिए सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल फ्रेमवर्क्स फॉर ट्राइबल पॉपुलेशन, देयर 5th शेड्यूल, 9th शेड्यूल, पेसा एक्ट, डिफरेंट थिंग्स, थोड़ा सा आप रेफरेंस दे सकते हैं, कोई एग्जांपल दे सकते हैं इसके साथ कि पेसा एक्ट कहाँ पे इम्प्लीमेंट अच्छे से नहीं हो पाया है, ठीक है, कुछ और मतलब करंट अफेयर से रिलेट कीजिए इन चीजों को। इन दिस वे यू शुड अप्रोच। नाउ द वे फॉरवर्ड, what should be done, what should be done to reduce the cases of extremism, right? So this is the way forward. Sensitization to local context. So extremism in general sense, extremism in general sense मतलब extremism can be in any part of India, कहीं पे भी हो सकता है, not only in northeast, not only in Jammu and Kashmir, so extremism can be anywhere. So sensitization to local context and custom, कहाँ पे लोकल कॉन्टेक्स्ट एंड कस्टम्स की बात हो रही है, ये तो स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात हो रहा है या फिर नक्सलाइट्स एरिया के बारे में, कि उनके जो लोकल कॉन्टेक्स्ट है और कस्टम्स है उनके प्रति सेंसिटाइजेशन करने की जरूरत है। नाउ द इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो आपको रटा पड़ा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा। प्रोटेक्टिंग ट्राइबल राइट्स की बात हो रही है, पेसा एक्ट इज देयर, फॉरेस्ट राइट एक्ट इज देयर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, यस, थ्रू टैक्स हॉलीडेज टू इन्वेस्टमेंट इन दोज एरियाज। टैक्स हॉलीडेज का मतलब क्या है, क्या है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, तो ठीक है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, बट थ्रू टैक्स हॉलीडेज टू इन्वेस्टमेंट इन दोज एरियाज। कोई भी एनीबॉडी वांट टू ट्राई? टैक्स पे कुछ छूट वगैरह देना, छूट होना, बिल्कुल छूट होगी, लेकिन ये जो टैक्स पे छूट देंगे किसको देंगे, ट्राइबल्स को या फिर किसको? उस एरिया में या तो डेवलपमेंट जो भी करना चाहता होगा उसके लिए। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। That is why you are seeing most of the industries, आप देखेंगे स्टील इंडस्ट्रीज, कोल इंडस्ट्रीज, राइट। एक बात, ये बात ठीक है, मैं मानता हूँ कोल इंडस्ट्रीज नीड इमीडिएट, दिस स्टील इंडस्ट्री नीड्स इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी, कोल उसको चाहिए, स्टील इंडस्ट्रीज को मैग्नीज उसको चाहिए, ठीक है, लाइमस्टोन उसको चाहिए, वाटर उसको चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी उसको चाहिए टू ऑपरेट। बट अगर हम स्टील इंडस्ट्रीज को सपोज कीजिए हम यूपी में लगाते हैं, तो इतना कोल वहां पे ढो के लाना वो अलग बात है, ठीक है, बट दैट कैन बी डूएबल। रेलवे अब इतना वो हो चुका है, अब इतना अच्छे से डेवलप हो चुका है, वो कर सकते हैं, बट वी आर नॉट डूइंग इट। व्हाई? बिकॉज वी वांट टू व्हाट, डेवलप दिस एरियाज। इस एरिया में डेवलप करने का एक यही तरीका है एटलीस्ट कि यहीं पे सारी इंडस्ट्रीज जाए। Government is pushing, government is doing providing tax holidays, government is providing free, I think free land, काफी जगह आपने देखा होगा फ्री लैंड प्रोवाइड की जा रही है ना। कनेक्टिविटी भी अच्छी कर रही है सर, कनेक्टिविटी अच्छी कर रही है। देयर वाज वन इंसिडेंट आप देखेंगे ड्यूरिंग जाट आरक्षण इन 2015 और 16, वन इम्पोर्टेंट थिंग वाज देयर, एक इंसिडेंट हुआ था इन द मानेसर। मानेसर जो है ये थोड़ा सा गुड़गांव के पास पड़ता है, इन द एनसीआर रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन, बट दिस एरिया इज द जुरिडिक्शन ऑफ हरियाणा। सो वन प्लांट ऑफ मारुति दैट वाज completely burned under the Jat protest. So the sense of security totally lost. Sense of security was lost. The industrialists want to shift whole of this manufacturing plant to the Gujarat. उसके बाद गुजरात उसने बना लिया था अपना मन, he wanted to I think shift
the whole plant to the Gujarat. वहाँ पे sense of security is better, law and order situation is better, but कैसे ना कैसे करके government gave a tax holidays, गवर्नमेंट ने उसको कंपनसेशन दिया, बहुत सारी चीजें, मतलब हाथ पैर जोड़ के उसको कैसे ना कैसे रोका। क्या गवर्नमेंट को ऐसा पड़ी थी? क्योंकि वो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, सो मैन्युफैक्चरिंग टैक्स और जो उसके ऊपर टैक्स लगता है द गवर्नमेंट विल अर्न। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। लोकल पॉपुलेशन वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बहुत ज्यादा मिलती है, लेकिन वो अलग बात है। नाउअडेज इंडस्ट्रीज आर नॉट हायरिंग द लोकल पॉपुलेशन। आप देखते हैं हरियाणा के अंदर भी द मेजर इंडस्ट्रीज इफ यू सी इन एनी स्टेट, इन एनी स्टेट्स इफ यू सी द इंडस्ट्रीज, द आउटसाइडर्स विल कम। लॉट ऑफ रिक्रूटमेंट इज डन थ्रू दिस आउटसोर्सिंग। वहां से अगर आपकी जो इंडस्ट्री है महाराष्ट्र में है तो पीपल विल कम फ्रॉम यूपी, पीपल विल कम फ्रॉम बिहार, पीपल विल कम फ्रॉम न्यू दिल्ली। ठीक है, व्हाई? बिकॉज द मोर नंबर ऑफ लोकल पीपल इफ प्रेजेंट देयर, if the local more number of local people will present there, they have the influence, they have the influence of in the governing of that particular industry. अगर आप उसकी बात करेंगे मारुति प्लांट के अंदर लॉट ऑफ जाट्स वर देयर, ठीक है, बहुत सारे जाट थे। आई ऑल्सो डू बिलोंग टू द जाट कम्युनिटी। तो यस शांतनु, इसके लिए सर हरियाणा गवर्नमेंट ने एक बारी कोशिश भी की थी अभी मेरे ख्याल से 6-7 महीने पहले कि कुछ परसेंट का लोकल पर्सन्स को एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। यस, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट पॉइंट। नॉट ओनली इन हरियाणा बट आल्सो इन आई थिंक कर्नाटका के अंदर देयर इज अ लॉ, डोमेस्टिक रिजर्वेशन एक्ट इज देयर, सो लोकल रिजर्वेशन एक्ट, रिजर्वेशन फॉर द लोकल्स, ये एक एक्ट था। तो ये दैट इज चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। दैट इज ऑल आई थिंक अ पॉलिटिकल एजेंडा, सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है। आई थिंक यू विल नॉट see this law as implemented in the next I think 10 to 20 years। ये होने वाला है नहीं implementation, but government क्या कहेगी, देखो we have tried at least कि आपको 75% of the reservation हम locals को देंगे, लेकिन ऐसा हुआ, implement हुआ? उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी तक अटका हुआ है। हरियाणा का तो बेसिकली, कर्नाटका का भी, सबका हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, ठीक है। तो वो होने वाला जाना है नहीं, मतलब कुछ ऐसा है नहीं। तो उसके बाद देखते हैं हम वेयर वर वी, टैक्स हॉलीडेज, वी अंडरस्टैंड टैक्स हॉलीडेज, दैट इज व्हाई द गवर्नमेंट ऑफ दिस बैकवर्ड स्टेट्स टू इन्फ्लुएंस द इंडस्ट्रीज कि हमारे यहाँ पे आके प्लांट लगाओ, वी विल प्रोवाइड यू फ्री लैंड या फिर बहुत ज्यादा चीप लैंड रेट पे, और आपको टैक्स हॉलीडे देंगे, मतलब 10 साल तक कोई भी टैक्स आपसे नहीं लिया जाएगा ऑन द मैन्युफैक्चरिंग, ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद आपको हम कनेक्टिविटी अच्छी करके देंगे, रेलवे लाइंस आपके लिए बिछा के देंगे। उसके बाद सिक्योरिटी के लिए वी विल प्रोवाइड यू सीएसएफ कवर या फिर लोकल जो आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस है उनका कवर आपको देंगे। बहुत सारी चीजें उनको प्रोवाइड करने की कोशिश होती है, ठीक। उससे क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एज एक व्हेनेवर यू रीड द ज्योग्राफी, इन ज्योग्राफी दैट इज, ये जो मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ बट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आई एम गोइंग ऑन ए टेंजेंट, बट ज्योग्राफी के अंदर देयर इज अ ग्रोथ पोल थ्योरी। ग्रोथ पोल थ्योरी के अंदर क्या होता है, इफ यू आर फोकसिंग ऑन वन पर्टिकुलर ग्रोथ पोल, मतलब कोई इंडस्ट्री आपने बना दी, उस इंडस्ट्रीज को सिर्फ डेवलप करने की फोकस कीजिए। उससे क्या होगा, उस इंडस्ट्रीज के आसपास यू विल सी एंसिलरी इंडस्ट्रीज। Take the example of Gurgaon. Most of the manufacturing of car manufacturing companies, they have established their plant in Gurgaon. अब गुड़गांव के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग कार्स वहां पे हो रही हैं, उसके आसपास देखेंगे एंसिलरी इंडस्ट्रीज है। एंसिलरी इंडस्ट्रीज मीन दी स्मॉल इंडस्ट्रीज। some industries are building windshield for this car, some are building electronic components, some are building tires, some are building chassis, some are building this front light, some may be building this cover of the seats, so different things are there। तो बहुत सारी एंसिलरी इंडस्ट्रीज उसके साथ डेवलप हो जाती हैं, एंसिलरी इंडस्ट्रीज होंगी। सो देयर उसके बाद वहां पे क्या होंगी, हाउसिंग फैसिलिटीज होंगी, तो उसके साथ में और क्या होंगी, यू नीड सम राशन शॉप, राशन की दुकानें खुल जाएंगी। उसके साथ क्या होगी, सिनेमैक्स, मल्टीप्लेक्स, डिफरेंट थिंग्स। सो दिस इज ऑल आई थिंक ग्रोथ पोल थ्योरी। यस शांतनु, कुछ कहना चाह रहे हो?
ये सारे इंटरकनेक्टेड है ना सर, एक दूसरे हाँ, से सब कुछ लग रहा सब है। कुछ इंटरकनेक्टेड है। एक आप ऐसे ही सोच लीजिए, आपके गांव में एक बस स्टैंड नहीं है, सपोज कीजिए, देर इन विलेज देर इज नो बस स्टैंड, बट इन दैट विलेज गवर्नमेंट अनाउंस कि इन द नेक्स्ट ईयर द बस स्टैंड विल बी मेड। बस स्टैंड बन गया, बस स्टैंड इज कंस्ट्रक्टेड, व्हाट विल हैपन? बस स्टैंड के आसपास यू विल फाइंड सम टी शॉप, बस स्टैंड के आसपास यू विल फाइंड सम फूड स्टॉल्स, बस स्टैंड के नियर बाय यू विल फाइंड सम मोबाइल रिचार्जिंग शॉप्स, मोबाइल शॉप्स, कोई भी आपको फूड कोर्ट मिल जाएगा, यू विल फाइंड सम मिठाई की दुकान, स्वीट शॉप, वेरियस थिंग्स यू विल फाइंड अराउंड ओनली द बस स्टॉप। ठीक है, दैट इज ऑल्सो ए ग्रोथ पोल मॉडल। एक छोटा सा सिर्फ गवर्नमेंट ने क्या किया, वहां पे कनेक्टिविटी बढ़ाई है, सिर्फ बस आके रुकेंगी, automatically the development will come. Okay, so this is all about this infrastructure development. It has a very good effect on this area. Okay, उसके बाद देखेंगे क्राइम्स का जो रेट है वो भी कम हो जाएगा। अगर किसी रोड पे ज्यादा आना जाना ट्रैफिक रहता है तो क्राइम विल रिड्यूस। ओके, नाउ कमिंग टू द this ensuring social security, livelihood security is there, food security and education. How we ensure education? This right to education act under article 21A. Food security act, there is act called food security act 2013. Okay, land reform is there, we have talked about the land reforms act of 1954. लैंड रिफॉर्म के अंदर देर आर ओनली 3 स्टेट्स जिसने सबसे अच्छे लैंड रिफॉर्म किए हैं, वन इज वेस्ट बंगाल, अनदर इज केरला, अनदर इज जम्मू एंड कश्मीर, जहां पे फुल मतलब फुल इम्प्लीमेंटेशन हुआ लैंड रिफॉर्म्स का। ओके, सब बाकी स्टेट्स में अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। जो नक्सलाइट्स अफेक्टेड स्टेट्स हैं वहां पे लैंड रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट नहीं हुआ। दैट इज द मेजर, आप बोल सकते हैं मेजर इंसिडेंट था, या मेजर जो आप बोल सकते हैं रीजन रहा है नक्सलिज्म को बनने के लिए। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इसका मतलब क्या है? सिर्फ एक एरियाज में आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को ज्यादा ध्यान मत दीजिए, देयर शुड बी अ रीजनल डेवलपमेंट, देयर शुड बी अ रीजनल डेवलपमेंट। हर एक एरियाज के अंदर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटीज शुड बी देयर। कंस्ट्रक्टिव डायलॉग विद एक्सट्रीमिज्म, यस वी हैव टॉक्ड अबाउट द इंटरलोक्यूटर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया had appointed an interlocutor which will talk about this extremist groups. Prosperity for all people, that is too vague statement. Prosperity for all people, how will you ensure prosperity with for all people? बहुत सारी चीजें कनेक्ट कर सकते हैं, आई विल लीव टू यू कैसे प्रोस्पेरिटी लाएंगे पीपल के लिए। एंटी करप्शन एफर्ट्स, यस दिस इज गुड। एंटी करप्शन एफर्ट्स के लिए क्या क्या हम लेके आए? डिजिटल, मतलब टेक्नोलॉजी की हेल्प ली हमने। जैम ट्रिनिटी इज देयर टू ब्रिंग टू रिड्यूस द लीकेजेस, उसके लिए। और डमी जो आपके एंटी करप्शन एफर्ट्स के लिए व्हाट यू विल टॉक अबाउट। एक और इम्पोर्टेंट आई थिंक थोड़ा करंट इससे रिलेट करते हैं, एंटी करप्शन डायरेक्टली तो नहीं आएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्राई टू लिंक द वोटर्स, ट्राई टू लिंक द वोटर्स विद द आधार कार्ड, विद देयर आधार कार्ड। ठीक है, इससे जो बोगी वोटर्स हैं, ठीक है, जो डमी वोटर्स हैं, उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा? अगर वहां पे जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकेंगे, देयर विल बी अ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। फ्री एंड फेयर इलेक्शन दैट इज द पिलर ऑफ एनी डेमोक्रेसी। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं है, जो पीपल जो पॉपुलर वॉइसेस है, अगर पॉपुलर वॉइसेस को कैसे ना कैसे करके दबा दिया जाए थ्रू इनफेयर मींस ऑफ इलेक्शन, डमी वोटर्स को भेज दिया जाए, और इस एरिया में नक्सलाइट्स एरिया के अंदर देयर विल बी, अगर सपोज कीजिए वहां पे बहुत ज्यादा बोगी वोटर्स है, डमी वोटर्स थे, वहां पे तो डेमोक्रेसी आने से रही, तो ठीक है, आधार कार्ड से कनेक्ट कीजिए, लीकेजेस कम कीजिए, डमी वोटर्स को कम कीजिए, तो एंटी करप्शन एफर्ट्स यहाँ से भी लगा सकते हैं आप। एंड ऑफ पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन, ठीक है, पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन की बात क्या है कि जैसे हम अंडर पेसा एक्ट बात कर लीजिए, या फिर लोकल सेल गवर्नमेंट के अंदर we ensured around 33% reservation for the SC and ST community. ठीक है, in the legislative assembly also in the states we ensured reservation for these people. ठीक है, उनके लिए रिजर्वेशन आई थिंक 20%, आई एम नॉट श्योर अबाउट द नंबर, बट आपकी पार्लियामेंट के अंदर भी रिजर्वेशन है फॉर द मार्जिनाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सो एंड ऑफ पॉलिटिकल मार्जिनाइजेशन। सोशल डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन की आप बात कर सकते हैं। अनटचेबिलिटी एक्ट सिमिलर वही चीज है। ह्यूमन राइट अब्यूजेस को कैसे कम कर सकते हैं। मिनिमम वेजेस एक्ट, डू यू नो द गवर्नमेंट रिसेंटली
I think presented a draft on labor reforms. लेबर रिफॉर्म्स के अंदर एक ड्राफ्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी किया है, आप सभी को पता है, ठीक है, 2 साल पहले की बात है, लेबर रिफॉर्म्स की बात है। तो लेबर रिफॉर्म्स के अंदर गवर्नमेंट ने क्या है, उनको मतलब दे शुड हैव अ वर्किंग कंडीशन उनकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, वर्किंग कंडीशंस, कैसी वर्किंग कंडीशन, एनवायरमेंट, मतलब किसी धुएं में काम ना कर रहे हो, देयर शुड बी सम प्रॉपर लाइट्स, राइट, लाइट्स होनी चाहिए। वहां पे अगर डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोन एक सिस्टम होना चाहिए, मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट को मतलब जल्दी से अगर इन केसेस देयर सम फायर, गर्मियों में आपने सुना होगा देयर आर लोड ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ फायर, क्यों, क्योंकि वहां पे प्रोटोकॉल को नहीं इम्प्लीमेंट किया गया कि एक छोटे से एरिया के अंदर यू कैन नॉट डू लॉट ऑफ थिंग्स, कोई भी ऐसे मतलब इनफ्लेमेबल यूज का सबसे ज्यादा होता है पटाखों की फैक्ट्री में फायर वर्क, इन सभी एरियाज में आपको पता होगा कि यहाँ पे बहुत सारे पटाखे की फैक्ट्री में आग लग गई, आई थिंक 30 से 40 लोग ऐसे ही मर जाते हैं, 100-150 लोग, बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो दैट इज अंडर द लेबर लॉज कि उनको एक रिस्पेक्टेबल एरियाज में उनको काम करने के मौका देना चाहिए। सो मिनिमम एजेस पे बात हुई है, जैसे कनाडा के अंदर व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल दे गो फॉर द कनाडा, ठीक है, इंजीनियर्स भाग लेते हैं कनाडा, वहां पे टैक्सी चलाते हैं, रेस्टोरेंट में काम करते हैं, इंडियन इंजीनियर्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो लोकल पीपल है तो वो भी जाके यही काम कर रहे हैं। सो वहां पे क्यों जा रहे हैं, बिकॉज देयर आर सम रिस्पेक्टेबल वेजेस, मिनिमम वेजेस है, इंडिया के अंदर मिनिमम वेजेस है तो ऑन पेपर है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, सो दिस इज ओनली अ पेपर टाइगर इन इंडिया, ठीक है। बट कनाडा के अंदर ऐसा नहीं है, अगर देयर इज सम मिनिमम वेजेस यू विल गेट द मिनिमम वेजेस, वर्क आवर्स पे डिपेंड है, 5-6 घंटे का अगर आप काम करेंगे यू विल गेट अराउंड $500, ठीक है, $600 ऐसा कुछ है उनका। प्रॉपर इम्प्लीमेशन ऑफ लेबर लॉस, ओके। नाउ कमिंग टू द कम्युनल वायलेंस फटाफट करते हैं, उसके बाद एक मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं एंड देन विल एंड द सेशन। कुछ और आप थोड़ा सा बात कीजिए ना, कोई क्वेश्चन पूछिए। नितिन आप कुछ कहना चाह रहे थे शायद। Sir, is universal basic income is feasible in India? टू सम एक्सटेंट नीति आयोग ने भी इस पे बोला है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम फिजिबल हो सकता है, बट फिजिबिलिटी इसकी निकालने के लिए we need to stop all these subsidies, we need to stop all the this spending on health infrastructure जो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, हर एक चीज को प्राइवेटाइज करना पड़ेगा, और जो पैसा बचेगा डायरेक्टली सभी आदमियों के खाते में डाल दिया जाए, तब तो यूबीआई हो सकता है। अभी जो मैंने लास्ट फिगर देखी थी, अराउंड 8 to 10 लाख करोड़ 8 to 10 lakh crore is spent on this health facilities, is spent on this subsidies, is spent on various things। 8 से 10 लाख करोड़ हम इस पे खर्च करते हैं। अगर इसको बचा ले हर एक देश, मतलब हम कोशिश करें हर एक आदमी के खाते में 1000 या 1200 रुपए मतलब हर महीने भेजें, तो ठीक है, हो सकता है यूबीआई। बट क्या हम यूबीआई के लिए सच में तैयार हैं? क्या उसका वाइज यूज होगा? हर महीने आप 1000 रुपए भेज देंगे तो 1000 रुपए जहां आपको हेल्थ पे खर्च करना चाहिए था, यू विल रिचार्ज योर मोबाइल, यू विल वॉच सम मूवीज, ठीक है। अब खर्चा तो मतलब कहीं और होना चाहिए था, तो उसका मतलब अच्छे से इम्प्लीमेंट करने में थोड़े से ये जो प्रॉब्लम्स है, मतलब इसमें डिस्क्रिशन है कि वो कौन कैसा खर्च करेगा। लिकर, लोगों के पास मतलब दारू पीने के पैसे नहीं होते, वो उधार मांगते किसी से, अब उसके पास थोड़ा सा पैसा आ गया वो शुरू कर देगा, उससे क्या होगा, सोशल इफेक्ट होगा, देयर विल बी सोशल इफेक्ट्स, सोशल इकोनॉमिक इफेक्ट। वहां पे डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, डोमेस्टिक वायलेंस, इट विल लीड टू डोमेस्टिक वायलेंस, बहुत सारी चीजें बढ़ सकती है। सो थिंक इन दिस वे, यूबीआई हो सकता है, बट यूबीआई इन देशों में हो सकता है जहां पे वी फाइंड लॉट ऑफ लिटरेसी रेट अच्छा है, पब्लिक ओपिनियन अच्छा है, लोग मतलब पढ़े लिखे हैं, दे नो कि कहाँ पे पैसा मतलब उनको फाइनेंशियल लिटरेसी है, कहाँ पे उनको इन्वेस्ट करना है, ये सभी चीजें। इंडिया में ये सभी चीजें नहीं है, मतलब इंडिया में जो लोग हैं वो एडहोक, मतलब एडहोक तरीके से जीते हैं, मतलब दे हैव नो प्लानिंग इन देयर माइंड, आज पैसा आ गया उड़ा दिया खत्म, प्लानिंग उनके पास नहीं है दिमाग में। मतलब यूबीआई करना इज अ गुड थिंग, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब एजुकेशन और अच्छी हो जाएगी तो कर सकते हैं। अभी के टाइम पे मुझे लग रहा है नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा होगा। नाउ कमिंग टू द कम्युनल वायलेंस, क्या है कम्युनल वायलेंस? देखिए, कम्युनल वायलेंस इज अ फॉर्म ऑफ वायलेंस
that is perpetrated across ethnic and communal lines. The violent parties feel solidarity for their respective group. देखिए इसमें बस इतना सा ध्यान रखिए, मैं कम्युनल कब बोला जाऊंगा। देखिए आई एम ए जाट, अगर रोड पे कोई जाट पिट रहा है, ठीक है, तो अगर मुझे पता लग गया उसकी आइडेंटिटी कि ही इज आल्सो ए जाट, आई शुड गो एंड स्टॉप अदर पीपल इररिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर ही हैज कमिटेड। अगर वो गलत हो, उसने मोलेस्टेशन किया हो, तो फिर भी मैं गया तो मैंने उसको बचाया। अगर ही इज अ हिंदू एंड अनदर मुस्लिम पीपल आर अटैकिंग ऑन हिम, ठीक है, irrespective this Hindu people, he has committed a serious crime on the spot, despite that I'm going to save him। तो ये that shows my communal attitude। किस लिए? सिर्फ इसलिए वो हिंदू है, मेरी जात से है, मेरे धर्म से है और मैं उसको बचाना है, that shows communal attitude। ठीक है, ये कम्युनलिज्म दिखाता है। कम्युनलिज्म इसके बाद और बढ़ जाता है, देयर आर स्टेजेस इन कम्युनलिज्म। पहला स्टेज होता है बस आपको पता लग गया, यू हैव आइडेंटिफाइड देयर आर टू कम्युनिटीज, हिंदू एंड मुस्लिम, बोथ आर एंटीगोइस्टिक। एंटीगोइस्टिक का मतलब वो एक दूसरे से अलग है, देयर आर सम बिटर एनिमिटी बिटवीन देम। सेकंड स्टेज का मतलब है, सेकंड स्टेज में आप देखेंगे देयर आर सम फ्रिक्शंस। सम फ्रिक्शंस का मतलब है इफ वन पर्टिकुलर कम्युनिटी इज ऑन राइज, अगर वहां पे हिंदू जो लोग हैं वो बढ़ रहे हैं, ठीक है, आपने देखा होगा इन मुस्लिम्स लिटरेसी रेट इज लो, हेल्थ स्टेटस इज लो, ठीक है, इनकम इज लो, इकोनॉमिक स्टेटस इज लो, राइट, रिलेटिव डेप्रिवेशन इज देयर। रिलेटिव डेप्रिवेशन है अगर वहां पे आप देखेंगे ड्यूरिंग दिल्ली राइट्स में एक एरिया के अंदर सिर्फ हिंदू दुकानें जलाई गई, ठीक है, एक एरिया के अंदर सिर्फ मुस्लिम दुकानें जलाई गई, ठीक है, जहां पे हिंदू डोमिनेटेड एरिया था, in those areas which were the Hindu dominated, only the shops which are run by the Muslim people that is burned, but in that area जहां पे Muslim dominated area था, only those shops which are run by the Hindu people that is burned। that shows a relative deprivation का उनको concept लगा कि यहाँ पे हमारे आके काम कर रहे हैं, that is the second stage। मतलब यहाँ पे उनका फ्रिक्शन और ज्यादा बढ़ गया। तीसरा स्टेज आती है कम्युनिज्म के अंदर कि we cannot live together at any cost, ठीक है, कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। डू नॉट यूज दिस वर्ड्स इन एनीवेयर, आई एम जस्ट एक मैं बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कहीं पे यूज नहीं करना ये वर्ड, बस आई एम गिविंग सम एग्जांपल, ठीक है। इससे डिफरेंट एग्जांपल भी यूज कर सकता था, बट इसमें थोड़ा सा मतलब ये आजकल हो रहा है देश के अंदर, तो मुझे बोलना पड़ेगा, ठीक है। नेवर यूज दिस वर्ड्स इन यूएसए, ओके। थर्ड के अंदर है कि हिंदू एंड मुस्लिम कैन नॉट लिव इन कोएग्जिस्टेंस। मतलब अगर हिंदू फ्लरिश करेंगे, दे थिंक इन दिस वे, इफ हिंदूज विल फ्लरिश मुस्लिम विल डिक्लाइन, राइट। सो दैट इज द थर्ड स्टेज एंड दैट इज द मोस्ट डेंजरस स्टेट। अगर इस स्टेट पे किसी आदमी की थिंकिंग है, सो इट्स अ प्रॉब्लम फॉर अवर सोसाइटी। अगर मुस्लिम बढ़ेंगे तो हिंदू विल गो ऑन डाउन, तो आरएसएस आइडियोलॉजी होगी और रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट, इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट जो हो गए, इस तरह की आइडियोलॉजी, दे कैरी दिस आइडियोलॉजी, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द कम्युनलिज्म। उसके बाद अगर कम्युनलिज्म को पॉलिटिक्स से कनेक्ट करे, ठीक है, क्योंकि यू नीड अ फ्यूल फॉर द फायर, तो फ्यूल कौन प्रोवाइड करता है? पॉलिटिक्स। यहाँ पे पॉलिटिक्स उसको आग में घी डालने का काम करती है, ठीक है, तो दैट इज द पॉलिटिक्स, ओके। सो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनल राइट्स, हिस्टोरिकल फैक्टर्स हम अगर बात करें, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल कम्युनल राइट्स, that is clearly written in your this internal security book, but I have compiled, छोटा सा मैंने लिखा है, ये फैक्टर्स आपके दिमाग में रहेंगे तो आप इजीली कभी भी कम्युनलिज्म पे कोई क्वेश्चन आएगा, you can easily write it। What are the factors? 1947 participation was totally on the lines of communalism, okay। historical factors यहाँ से cover हो गया। political factors पे divide and rule politics is there during this Bengal participation, communalism वहाँ से सिखाया। 1909 Morley-Minton reforms, डिवाइड एंड रूल, ओके। पॉलिटिकल फैक्टर्स अभी रिसेंट भी बात कर सकते हैं आप, बहुत सारे पॉलिटिकल फैक्टर्स, सीए, कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपका सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट था, ठीक है, ओनली दोस रिलीजियस कम्युनिटीज एक्सक्लूडिंग मुस्लिम्स, ठीक है, उनको ही सिटीजनशिप देने का बात की गई, ओके। उसके बाद देखेंगे एजुकेशनल फैक्टर्स, लैक ऑफ मॉडर्न एजुकेशन,
one beautiful question this time, this year they have asked. क्या क्वेश्चन पूछा था, कोई बताएगा? A synthesis of, बताइए मुझे, synthesis of Western science and Eastern So culture. Eastern wisdom and Western science. Eastern wisdom and Western science. उससे क्या होगा, उससे एक सेकंड मैं ओपन ही कर लेता हूँ. उसके बाद क्या था, मतलब कुछ कॉन्टेक्स्ट दिया था, इससे क्या हम ठीक कर सकते हैं. A needed goal for humanity. हाँ, नीडेड गोल फॉर ह्यूमैनिटी. ठीक है, ये खुल गया, ये रहा. सिंथेसिस फॉर, कैन यू कनेक्ट दिस विद कम्युनलिज्म? कर सकते हैं. क्यों ऐसे कम्युनल इंसिडेंट वेस्टर्न, मतलब आप देखेंगे यूरोप में नहीं है, वहां पे कम्युनलिज्म है नहीं है. आई थिंक नेग्लिजेंस होगा, इक्का दुक्का, पता नहीं, आज तक तो कोई केस आया नहीं. ठीक है. वेस्टर्न साइंस मतलब लॉजिकल थिंकिंग है उनके पास, यहाँ से हम ये बात कर सकते हैं. ठीक है, उनकी पॉजिटिव चीजें हम ले सकते हैं वेस्टर्न साइंस की. और ईस्टर्न विजडम आप बात कर सकते हैं. यू कैन टॉक अबाउट गांधीयन फिलोसफी, यू कैन टॉक अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर फिलोसफी, यू कैन टॉक अबाउट मैनी फिलोसफीज. ठीक है, अम्बेडकर फिलोसफी. ओके, देयर आर वेरी, आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स. इसके बाद अ नीडेड गोल फॉर ह्यूमैनिटी, दैट इज द कॉन्टेक्स्ट. ये कॉन्टेक्स्ट है, ये आंसर करना हमें. ये हमें क्या दे दिया, ये हमें टूल्स दे दिए, सिर्फ टूल्स दिए हैं. सिंथेसिस फॉर ईस्टर्न विजडम एंड वेस्टर्न साइंस, ये टूल्स हैं. और ये क्या है हमारा, ये हमें अचीव करना है. नीडेड गोल फॉर ह्यूमैनिटी. अब हमें ह्यूमैनिटी देखना है, ऐसा क्या इशू है, क्या रीजंस है, क्या हो रहा है मतलब प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर, जिसमें ईस्टर्न विजडम काम करेगी और वेस्टर्न साइंस दोनों जब कोलैबोरेशन में काम करेगी, वी कैन सोल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम. यू हैव टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ दैट प्रॉब्लम. इसमें क्या है, यू नीड टू रीड बिटवीन द लाइंस. इसमें मतलब कहना क्या चाहता है, मतलब ये मुझे क्या कहना चाहता है. यहाँ पे आपकी खुद का दिमाग काम करेगा. जब तक आप खुद का दिमाग नहीं यूज करेंगे, हमेशा आपको क्या ढूंढना है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम, ऐसे कुछ ढूंढिए, देयर आर सम प्रॉब्लम, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है और आई विल रीच टू द सॉल्यूशन. ये भी गोल की बात कर रहा है, नीडेड गोल फॉर ह्यूमैनिटी. ठीक है, तो यहाँ पे आई विल कनेक्टेड विद कम्युनलिज्म. कम्युनलिज्म क्यों है, इरेशनल थिंकिंग है. जैसे अभी मैंने बात की, देखिए यस, एजुकेशनल फैक्टर्स. मोस्ट ऑफ द पीपल हु इन्वॉल्व इन दिस राइटिंग, या फिर आप राइट्स के अंदर जो पार्टिसिपेट करते हैं, लिटरेसी लेवल देखेंगे तो इनका मतलब कुछ नहीं, 8वीं पास भी नहीं होंगे, 10वीं पास भी नहीं होंगे. ठीक है, कई बार लोग ग्रेजुएट भी होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, बट हैविंग ओनली डिग्री डजंट मीन के उसको एजुकेशन है. ठीक है, एजुकेशन इज नॉट ओनली टू हैव योर डिग्री. एजुकेशन मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन. एजुकेशन मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब आप में कंप्लीटली यू हैव बिकम अ मॉडर्न मैन. मॉडर्न मैन आप इस तरह से बन गए हैं, यू विल अलाउ अदर्स उनकी जो आइडियोलॉजी है, वो जो काम करते हैं, उनको मतलब जो रहने का तरीका है, यू अंडरस्टैंड देयर वे. यस नितिन. Sir, on a contrary, Osama is an engineer, sir. हाँ, Osama was an engineer. Excellent. But do they think he also attained the modern education? But उसका रेडिकलाइजेशन, माइंड इतना रेडिकल हो गया था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं. तो ओसामा के अंदर मतलब उनकी जो फिलोसफी है, उनको मतलब कहाँ से ये सब चीजें आई, दैट इज स्टिल अ मिस्ट्री. और काफी चीजें देखनी पड़ती हैं जो आपके होते हैं ना, फैनेटिकल माइंडेड जो लोग होते हैं, पागल होते हैं, साइको. ठीक है, इस तरह के मतलब उनको पता नहीं क्या इंसिडेंट रहा होगा. तो ऑल इज दिस रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट लोग हैं ये, एक तरह से जो आपका इस्लाम है, जो कुरान है, उसको अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं रेडिकल वे में. ठीक है, रेडिकल वे में जब आप इंटरप्रेट करेंगे तो वो आपको कुछ ना कुछ गलत नतीजा ही देगा. ओके, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, यस समबडी हैज रिटन, गिरीश ने बोला है कि एन इलिटरेट पर्सन कैन बी हाईली एजुकेटेड. यस, इलिटरेट पर्सन कैन बी हाईली एजुकेटेड. आपने देखा होगा द पीपल हु डज नॉट अटेन एनी डिग्री, बस उसकी आप सोशल कैपिटल देख लीजिए. सोशल कैपिटल का मीनिंग द पीपल हु फॉलोज हिम, उसको मतलब उसके जो आदर्श हैं, उसके जो प्रिंसिपल हैं, द वे ही कम्युनिकेट विद द पीपल. ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा बेटर है. उसकी नेटवर्किंग, उसका लोगों से बात करना, उनकी ग्रीवेंसेस को सुनना. ठीक है,
that is all a social capital. You have seen most of the political leaders, they do not have an education background but they are doing very good in this, right? तो उनका social capital ये सिर्फ okay. उसका देखिए साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, फियर साइकोसिस, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का मतलब फियर साइकोसिस यहाँ पे लिखना चाहूंगा मैं स्पेसिफिकली फॉर मुस्लिम पॉपुलेशन. ड्यूरिंग अ फ्रीडम स्ट्रगल का एग्जांपल दूंगा. ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल मुस्लिम डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन मेजर इवेंट्स बिकॉज ऑफ द फियर साइकोसिस. फियर साइकोसिस क्या है? आफ्टर द पार्टिसिपेशन, अगर मतलब आफ्टर द इंडिपेंडेंस अगर देश आजाद भी हो गया तो वी विल रिमेन ओनली सबऑर्डिनेट, हम सबऑर्डिनेट ही रह जाएंगे. मतलब बिकॉज वी लैक लिटरेसी, वी लैक मॉडर्न मीन्स ऑफ दिस मॉडर्न मीन्स ऑफ एजुकेशन नहीं है हमारे पास, वी लैक्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी चीजें. तो फियर साइकोसिस था, फियर साइकोसिस जनरेट हुआ उनके अंदर, अंग्रेजों ने उनको ऐसा कर दिया. तो वे चाहते थे कि देश गुलाम रहे, अंग्रेजों के अंडर ही रहे, हमें यहाँ पे ज्यादा क्या मिल रहे हैं. जैसे मोरले मिंटो रिफॉर्म के अंदर 1909 की बात करें तो उनको ज्यादा, मुस्लिम्स को ज्यादा एवेन्यूज मिल रहे थे इन द पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के अंदर, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के अंदर, बहुत सारी चीजें. अनदर इज आइडेंटिटी क्राइसिस और आइडेंटिटी फैक्टर्स. हम बात करें तो नेशनल मेन स्ट्रीम के अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस, वी हैवंट सीन a major or most of the major leaders in the Congress belonging to the Muslim party. Many of you may be I think disagree, but कांग्रेस के अंदर मुस्लिम पार्टी मतलब मुस्लिम लीडर्स थे, ठीक है, लेडीज थे, बट उसको पॉलिटिसाइज किया किसने? मुस्लिम लीग ने. मुस्लिम लीग ने पॉलिटिसाइज किया कि जो ये लीडर्स हैं, मुस्लिम लीडर्स हैं इन द कांग्रेस पार्टी, ये चमचे हैं सिर्फ हिंदू के, ठीक है, हिंदू महासभा या फिर इनके चमचे, ऐसे उनको मतलब गलत तरीके से फ्रेम किया गया, ठीक है. तो आइडेंटिटी क्राइसिस, लोगों को लगा ये तो फिर इनके नीचे ही रह जाएंगे, तो मुस्लिम लीग इज अ सेपरेट थिंग, हमें आइडेंटिटी अपनी चाहिए, तो इसलिए वी गो विद द मुस्लिम लीग, ऐसे ऐसे मतलब तरीके, मतलब ये सभी चीजें हुई वहां पे. उसके बाद कल्चरल फैक्टर्स, कंजर्वेटिज्म एंड फंडामेंटलिज्म. फंडामेंटलिज्म वी हैव टॉक्ड अबाउट. फंडामेंटलिज्म जैसे आपका रिलीजियस फंडामेंटलिज्म हुआ. कंजर्वेटिज्म का मतलब बहुत सारे मतलब who lack modern thinking, ठीक है, कंजर्व लोग होते हैं जो, आपने बहुत सारे केसेस सुने होंगे, दैट इज ऑनर किलिंग, ठीक है, ऑनर किलिंग. यू कैन रिलेट दिस कंजर्वेटिव एटीट्यूड ऑनर किलिंग के साथ आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, कंजर्वेटिव हैं. ओके, द ISI फैक्टर्स, रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट, बहुत सारी देखा होगा कि आपने इन द केरला से, तमिलनाडु से, इन द सदर्न स्टेट से, मोस्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट इन द ISI वाज डन थ्रू सोशल मीडिया. तो रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट क्या है? और वो जो पीपल है दे आर मुस्लिम. वहाँ पे जो मुस्लिम थे, कुछ लोकल पॉपुलेशन थी जो मुस्लिम, उनको वहां से हायर किया गया, ठीक है. उसके बाद इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनेशनल पैन इस्लामिक जिहादीज मूवमेंट. देखो जिहादी मूवमेंट के अंदर एक जो आइडियोलॉजी थी है वो है वहाबी आइडियोलॉजी, वहाबी, ठीक है. वहाबी जब आप पढ़ेंगे, वहाबी आइडियोलॉजी, ये बहुत डेंजरस है, ठीक है. तो ये बहुत डेंजरस है. इस आइडियोलॉजी को जब आप पढ़ेंगे कि मतलब बहुत ही इनको ये चाहते हैं कि जो वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं या फिर जो मॉडर्न एजुकेशन दे रहे हैं या फिर ये हमारे दुश्मन हैं वेस्टर्न कंट्रीज, इनको जब तक सबक न सिखाया जाए, तो इस तरह की आइडियोलॉजी है, बहुत ही एक्सट्रीम आइडियोलॉजी है. उसका डेमोग्राफिक फैक्टर्स देखिए, हाउ डेमोग्राफिक फैक्टर्स लीड टू द रिस्पॉन्सिबल ऑफ कम्युनल राइट्स. ओके, डेमोग्राफिक फैक्टर्स, जैसे हम नॉर्थ ईस्ट की बात कर ले, मैंने आपसे बात किया था ड्यूरिंग 1971 माइग्रेशन जब हुआ था फ्रॉम द बांग्लादेश टू द नॉर्थ ईस्ट, डेमोग्राफिक इक्वेशन गॉट चेंज्ड. ओके, इन महाराष्ट्र इफ यू सी द डेमोग्राफिक इक्वेशन, आउटसाइडर्स आर पनिश्ड. जो यूपी से आते हैं, बिहार से आते हैं, उनको क्या बोलते हैं? आउटसाइडर्स. और उनको कहीं भी मतलब खड़े होके जैसे ऐसे पीट देते हैं. मुंबई में जो लोग हैं, ठीक है, तो पीट देते हैं उनको. सन ऑफ द सॉइल पॉलिसी, दे सन ऑफ द सॉइल पॉलिसी दे फॉलो इन दैट पर्टिकुलर एरियाज. तो डेमोग्राफिक फैक्टर इज देयर. जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जब हिंदू रेफ्यूजीज को, हिंदू कश्मीरी पंडित्स को, whenever we try to take this Hindu Kashmiris back to the Srinagar, तो आपको पता है क्या हुआ वहाँ पे? टारगेटेड किलिंग हुई है. तो the government tried to change the demographic factor in that area, but that is not accepted by the local population. Okay, again the social media factors is there. Organized criminal involvement, lack of strong action. अगर गवर्नमेंट अच्छे से स्ट्रॉन्ग एक्शन ले ले कम्युनल वायलेंस पे, बट इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है ना गवर्नमेंट का. गवर्नमेंट वांट द पीपल टू बी पोलराइज्ड.
जितना ज्यादा पोलराइज्ड होंगे उनके वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए इट इज वेरी गुड, ठीक है। तो दैट इज व्हाई द गवर्नमेंट डिलेज देयर रिस्पॉन्स। द दिल्ली राइट्स कुड हैव बीन अवॉइडेड, intelligence was there, but it was not the timely reaction shown by the Delhi police. Most of the cases you have seen, Muzaffarnagar riots, you may have seen the riots in Jat आरक्षण also, right? So they want to polarize government. जब आप देखेंगे प्रकाश सिंह, जाट आरक्षण के बाद सुप्रीम कोर्ट हैड अपॉइंटेड अ पर्टिकुलर कमेटी, दैट इज प्रकाश सिंह आपने सुना होगा, ही वाज अ क्रूसेडर who is always fighting for the police reforms। तो पुलिस रिफॉर्म्स के लिए आपने देखा होगा प्रकाश सिंह बहुत अच्छा काम कर रहे थे। तो ठीक है, उसके बाद ये कमेटी उन्होंने बनाई, he came up with the point that police had the intelligence, police had the wherewithals, सभी चीज उनके पास थी, but they did not act। I was present at one particular place, I studied from the Kurukshetra University, so it was a time of 2015 और 16, तो 2015-16 का टाइम था। जो हमारा मेन एंट्रेंस था यूनिवर्सिटी के बाहर से मतलब लोग वहां पे टेंट लगा के बैठे थे, ठीक है, इन द जाट प्रोटेस्ट। डीएसपी केम, आई वाज देयर, ठीक है, आई वाज देयर, मैं देखने जा रहा था बस क्या हो रहा है वहां पे। आई वाज नॉट द पार्ट ऑफ द प्रोटेस्ट, बस मुझे देखना था क्या क्या हो रहा है वहां पे। डीएसपी केम, डीएसपी एड्रेस द स्टूडेंट, डीएसपी ने ऐसे बोला, देखिए आराम से बैठिए, आपको कुछ नहीं होगा, हम आपके साथ हैं, ठीक है। दीज वर द वर्डिंग्स गिवन बाय द डीएसपी। उसको आपको पता चल रहा है कि क्या लॉ एंड एनफोर्समेंट जो है, लॉ एंड ऑर्डर के जो एनफोर्समेंट जिनको करना है, अगर वो ऐसा बोलेंगे तो क्या होगा, ठीक है। दिस वाज द रियल लाइफ एग्जांपल आई हैव सीन। उन्होंने बोला सिर्फ आप आराम से बैठे रहिए, वी आर विद यू, बस। 50 लोग थे, 50-60 लोगों को खदेड़ने में पुलिस को ज्यादा टाइम लगता नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे दिस इमीडिएट फ्लैश पॉइंट्स फॉर राइट्स। कभी भी आप देखेंगे देयर मस्ट बी इमीडिएट फ्लैश पॉइंट्स। आप यूपी के अंदर देखेंगे, बिहार के अंदर देखेंगे, कम्युनल वायलेंस होने के लिए क्या चाहिए उनको, एक ये वाला चीज चाहिए कि फलाने के मतलब दिस पर्टिकुलर बॉय हु बिलोंग्स टू वन पर्टिकुलर कम्युनिटी, इसने इस दूसरी कम्युनिटी की लड़की को छेड़ दिया है, ठीक है, मोलेस्टेशन किया है, दैट बिकम अ प्रेशर पॉइंट। वहीं से सारा इरप्ट होता है हर एक चीज। So gender offenses, land dispute, maybe there land dispute, a classical example of Babri Masjid. Religious festivals is there. Have you seen this religious festivals? JNU violence अभी भी देखा हमने, JNU violence, ठीक है। वहां पे जब रामनवमी हो रही थी तो वहां पे उनका ईटिंग हैबिट्स जो थी, वहां पे नॉन वेज बनाने से मना कर दिया। वायलेंस वाज देयर इन द JNU। ओके, सो दीज आर द इमीडिएट फ्लैश पॉइंट्स फॉर राइट। नेक्स्ट इज द वे फॉरवर्ड, क्या क्या हम कर सकते हैं टू स्टॉप द कम्युनल दिस वायलेंस। टेक प्राइड इन अवर हेरिटेज, ये देखिए सब किताबी बातें हैं, दीज आर ऑल बुकिश थिंग्स। इम्पार्शियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस, जैसे मैंने अब जो आपको आई हैव शेयर्ड द स्टोरी, दैट इज इम्पार्शियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस की जरूरत है, पता नहीं होगा या नहीं। पॉलिसी ऑफ जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स वायलेंस, पीस कमेटीज, when people's heart through media and civil society, sensitize people towards feeling of minority, holistic development of minority communities, right? So this is the way forward, holistic development, all these things, ऐसे कोई rocket science नहीं है, सबको समझ में आ रहा होगा क्या क्या है, ठीक है। Now there are many more things, impart liberal values, education system में liberal values की बात कर सकते हैं। legal action, who is the offender, उसके against legal action कर सकते हैं। positive utilization of social media, ठीक है, सोशल मीडिया पे हमेशा आप क्यों सेंसिटिव जो चीजें वो शेयर करें, उसका पॉजिटिव यूज कर सकते हैं, पता नहीं होगा या नहीं। पॉजिटिव यूटिलाइजेशन, क्योंकि पॉजिटिव यूटिलाइजेशन करेंगे कोई देखता नहीं है, सब सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को देखना पसंद करते हैं। प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस ऑन सोशल मीडिया, नीड टू इवॉल्व अर्ली वार्निंग, दैट इज इंपॉर्टेंट। अर्ली वार्निंग सिग्नल्स टू प्रिवेंट कम्युनल फ्लेयर अप्स, कैसे? इंटेलिजेंस से। इंटेलिजेंस कैसे? जो भी कम्युनल सेंसिटिव एरियाज है वहां पे आपको कोई इंसाइडर चाहिएगा, यू नीड टू हैव एन इंसाइडर, ठीक है, जो आपको टाइमली इंटेलिजेंस देगा। सभी पुलिस के पास होते हैं इंसाइडर्स। बैन ऑन कंटेस्टिंग इलेक्शन, अगर कोई इस तरह के मतलब कम्युनल सेंसिटिव स्टेटमेंट जो देता है, देयर इज अ प्रोविजन अंडर आरपी एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। अगर कोई भी मेंबर या फिर कोई जो कंटेंडर है, इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रहा है, इफ ही इज एवर फाउंड
कन्विक्टेड अंडर दिस एक्ट, आरपी एक्ट के अंडर उसको अगर कम्युनल सेंसिटिव कुछ ने अभी कोई स्पीच दी है तो ही विल बी बार्ड टू कंटेस्ट एनी इलेक्शन फॉर द नेक्स्ट आई थिंक 5 to 6 years. उसके बाद स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स टू डील विद कम्युनल राइट केसेस, मैन पावर शॉर्टेजेस इन पुलिस, यस देयर आर मैन पावर शॉर्टेजेस. कम कैसे करें? रिक्रूटमेंट करने के लिए क्या होगा? देयर शुड बी रिक्रूटमेंट करने के लिए उनको पैसा, मतलब सरकार हमेशा किस लिए देखती है? इसलिए पुलिस की जो स्ट्रेंथ है नहीं बढ़ाती. दे नीड टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन द पुलिस. उनकी पेंशन्स देखनी पड़ेगी, उनकी सैलरीज देखनी पड़ेगी, नहीं करती. दैट दीज आर ऑल पॉलिटिकल इश्यूज. कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ पुलिस एंड इम्प्लीमेंटेशन, मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही है. वीडियोग्राफी ऑफ राइट्स, दिल्ली पुलिस ने वीडियोग्राफी की थी राइट्स की. वीडियोग्राफी के अंदर देयर वर मेनी केसेस जिनको मतलब दिल्ली पुलिस ने बोला ही इज एन ऑफेंडर, उसके अगेंस्ट बहुत सारे सीरियस क्राइम वाज फ्रेम्ड, बट दैट पर्टिकुलर केस गोज इनटू द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या है इसका सबूत, क्या है, व्हाट इज द प्रूफ कि दिस पर्सन इज इन्वॉल्वड इन देयर. उन्हें बोला वीडियोग्राफी है. दिल्ली पुलिस हैज सेड दैट वी हैव द वीडियोग्राफी, वी हैव द फुटेज. So the Supreme Court had said that what is the credibility that this person was there only. So they have said that they have used the facial recognition system, facial recognition system, FRS. So Supreme Court has said that what is the accuracy rate? Delhi Police has said that 80%. 80% accuracy है, 20% नहीं है. ठीक है, तो these are the thing you should know कि technology has some limitation. 80% एक्यूरेसी दिल्ली पुलिस कह रही है, मे बी इट मे बी 60%, किसको पता है. ठीक है. सो वीडियोग्राफी ऑफ राइट्स इन स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन अगेंस्ट राइटर्स नहीं, RIOTERS. ओके. क्रिएशन ऑफ सोर्सेज इन कम्युनल सेंसिटिव एरियाज, प्रिवेंटिंग कम्युनिटी बेस्ड ghettos, formulating counter radicalization and de-radicalization policy. That is important, de-radicalization policy, because an ideology can be only countered by some ideology. There must be a de-radicalization policy. कैसे de-radicalization policy? पकड़ेंगे उनको, we will send to rehab, वहां पे उनको योगा वोगा कराएंगे, बहुत दिन तक एजुकेशन देंगे, उनको लेक्चर देंगे, उनको स्पिरिचुअल गुरु के पास लेके जाएंगे. So these are all comes under de-radicalization policy. Okay, so shall we stop or shall we continue with the organized crime? हमें कोई जल्दी नहीं है कोर्स कंप्लीट करने की. We can have this class tomorrow also after the test. We'll finish internal security tomorrow. Organized crime रह गया, उसके बाद बहुत सारी चीजें और हैं इधर उधर की. साइबर सिक्योरिटी इज देयर. Okay, shall we stop or shall we continue tomorrow? Yes, Continue tomorrow. Okay, continue. मुझे लग रहा है सब सो चुके हैं. No sir, पूछ रहा था सर कि टेस्ट का टॉपिक क्या रहेगा? हाँ, टेस्ट का टॉपिक इंटरनल सिक्योरिटी अभी तक का बस यही रहेगा, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव है. टेस्ट का टॉपिक रहेगा आपका बॉर्डर मैनेजमेंट से आ सकता है. देखिए कुछ ऐसा जर्नल ही रहेगा, डरने की जरूरत नहीं है. वी विल डिस्कस द टेस्ट. ठीक है, नक्सलिज्म, टेररिज्म. आज तक वैसे नक्सलिज्म पे डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आया, बट फिर भी टेररिज्म पे तो आया है. और ऑर्गेनाइज क्राइम पे मुझे लगता है इस बार आ सकता है, बट टेस्ट में हम यही रखेंगे थोड़ा सा नॉर्मल, कोई ज्यादा टेंशन नहीं है. विल डिस्कस द टेस्ट आल्सो विद यू, कैसे कैसे अप्रोच करना. बस एक चीज ध्यान रखना, लुक फॉर द कीवर्ड्स. कीवर्ड्स क्या दिए गए हैं? 2 कीवर्ड है, 3 कीवर्ड है, कितने कीवर्ड है इन द टॉपिक. फ्रेम योर माइंड, ट्राई टू डू सम ब्रेनस्टॉर्मिंग. उससे रिलेटेड जो भी याद है, उस कीवर्ड से रिलेटेड जो भी याद आए लिखना है, जॉट डाउन करना है, फिर आपको सेंटेंस फॉर्मेशन करना है. ठीक है, उस कीवर्ड से रिलेटेड ऐसे मतलब उससे रिलेटेड उसको ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन दिस टू की जो कीवर्ड्स हैं आपस में ज्वाइन करके फॉर्म एन सेंटेंस. एक सेंटेंस फॉर्म कर दीजिए, बस गिव अ डायमेंशन, खत्म. हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन जब हम करेंगे ना, विल डिस्कस. ओके, सो विल एंड द सेशन. गुड नाइट एवरीवन. गुड नाइट गाइस. Good night sir. Good night. Yes, Girish, question. Sir, when will be the test, sir? Tomorrow 9 p.m. exact. 9 p.m. 9 or I should keep at 10 or 11. Discuss the timing. शाम को ही होगा ना सर या फिर सुबह होगा? नहीं, 10 और 11 AM. टेस्ट सुबह होगा. टेस्ट सुबह होगा AM और क्लास वुड बी सेम टाइम 9 PM. ओके, 10 या फिर 11 बताओ क्या रखूं टेस्ट का टाइम? 10 AM रख लो सर. 10 AM. ओके, 10 AM would be the test timing for tomorrow.
tomorrow test timing होगी, all should be present in the Zoom session. Okay everyone. तो सर जैसे ये टेस्ट होगा तो इसका एनालिसिस वगैरह कैसे ग्रुप पे डालेंगे आप, हम या आपस फिर में यहीं डिस्कस पे कर डिस्कस कर लेंगे, लेंगे? हम आपस में यहीं डिस्कस कर डिस्कस कर लेंगे। लेंगे। एक तो आपको फीडबैक मिलेगा पर्सनलाइज्ड, एग्जैक्टली। एक तो वो मिलेगा, उसके बाद विल डिस्कस, आपस में डिस्कस करेंगे कैसे अप्रोच कर सकते थे और क्या लिख सकते थे, दैट मेक सेंस। ठीक है, वो राइट अप देने में मुझे मुझे ऐसा लगता नहीं है, आई विल कॉपी पेस्ट सर्टेन थिंग्स, उससे कोई फायदा है नहीं। ठीक है, द इन्फॉर्मेशन विल बी रिटन ओनली देयर, उसमें बहुत बड़े लॉन्ग सेंटेंसेस होते हैं, दैट इज नॉट यूजफुल ऑल्सो। सो दिस स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो आपका करंट से रिलेट होती हैं जो चीजें, वो इंपॉर्टेंट होती है। जो आपको बड़ी बड़ी बुकलेट्स मिलती है ना विजन आईएएस के और ये सभी चीजें, दे आर फॉर द जनरलाइज, मतलब न्यू कमर्स के लिए होती है ये, सच बताऊं तो दिस आर तो न्यू कमर्स, क्योंकि वही पैसा दे के जाता है इंस्टीट्यूट को, न्यू कमर्स जो होते हैं ऑलरेडी कोई एडवांस स्टेज में अपनी प्रिपरेशन की, ही ओनली स्टिक्स टू द न्यूज़पेपर। ठीक है, सिर्फ न्यूज़पेपर को, क्योंकि ही नोज व्हाट टू रीड व्हाट नॉट टू रीड। लेकिन इन जो मैगजीन्स में है, दे कवर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजें सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हाँ दैट थिंग्स कम्स फ्रॉम आवर सोर्स, ये दिखाने के लिए दे मेक इट मोर बल्कि, और इतना जरूरत है नहीं। ठीक है, तो जो चीजें इंपॉर्टेंट होगी पेपर 2 के लिए, वी आर वर्किंग ऑन अ मैगजीन, मंथली मैगजीन, जो जरूरत होगी वो विल गिव टू यू। ओके, सो वाइंड अप करते हैं, टुमारो 10 AM विल सी, विल मीट, there will be around there will be around 4 essay topics, in that you will write on 2। ठीक है, 2 ऐसे टॉपिक पे लिखना पड़ेगा। I also give 1 रिपोर्ट, एक रिपोर्ट आपको लिखनी है, I'll give also ठीक है, उसके बाद थोड़ा बहुत सरप्राइज रहेगा, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज भी तो रहना चाहिए। ठीक है, ओके, गुड नाइट। नाइट सर, थैंक यू सर।